All right. अच्छा जी, आज हम जो हैं टॉपिक्स मतलब इट मे सीम लाइक अ लॉट, लेकिन टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, एक्सेप्ट फॉर मे बी लाइक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जो काफ़ी लंबे। तो फर्स्ट हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स कर लेते हैं, एंड देन विल मूव ऑन टू द लार्जर वन, ठीक है। Endometriosis, you already know this condition, ठीक है. It is a common condition that's defined as endometrial tissue lying outside the uterine cavity, ठीक है. And we've already studied this in pathology, so I'm not going to go into too much detail about that. Then adenomyosis, basically जब endometriosis जो है, it's actually the endometrial tissue is within the myometrium. तो ये हम आगे देखेंगे डिटेल में, ठीक है. Etiology में there are two types. There are two like theories of how this happened. So we have the Samson's implantation theory and the Mayer's coelomic metaplasia theory. So just remember the names for this, ठीक है. We've already seen this as well before in our pathology. अच्छा, clinical features क्या आते हैं? We have the classical clinical feature, that is the severe cyclic non-colicky pelvic pain. अब ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, because scenario में it'll be like she has pain and she has bleeding, and this happens like when she's menstruating or like a few days before her menstrual period starts. So she gets pain in her abdomen, ठीक है. तो it's cyclical, and you have to remember it's related to the period, because the estrogen is going to obviously cause these, एक तो endometrial glands जो सही जगह पे भी हैं उसकी भी estrogen cause करती है growth, लेकिन जहाँ गलत जगह पे भी होते हैं तो उसकी भी estrogen जो है करती है cause growth, ठीक है. तो this is the reason, ठीक है. Severe cyclical non-colicky pelvic pain है, and it's restricted to around the time of menstruation. And there is also sometimes heavy menstrual loss. तो heavy menstrual bleeding जब हम कर रहे थे उसके अंदर हमने endometriosis as a cause भी पढ़ा था, ठीक है. Then we have if we see that all right, let me tell you the page number. Page number is 159. Right. अच्छा, अब 159 में क्या है? Okay, sometimes the women, they also complain of chronic non-cyclical pelvic pain and their severe fatigue. So between her menstrual periods, she may complain of abdominal pain, and it may be endometriosis. But obviously that is a diagnosis that you have to make as a clinician, ठीक है. तो pelvic pain के साथ साथ you also have symptoms of irritable bowel syndrome. Like approximately 80% females को, along with endometriosis, they also have irritable bowel syndrome or some sort of constipation along with it, ठीक है. तो there may be deep pain with intercourse, deep dyspareunia, and pain on defecation, dyschezia जिसको कहते हैं. And they're the key indicators of the presence of endometriosis deep within the pouch of Douglas. ठीक है, तो I'll just tell you some basic anatomy. This is your endometriosis per day. ठीक है, this is your bladder. ठीक है, ये anterior part है female का. This is your bladder. ये बहुत rough है. And this is your uterus. It's not supposed to look like this. It's supposed to go this way. हम लोग देखेंगे what do you mean by anteverted uterus, what do we mean by retroverted uterus. खैर, और ये है हमारा rectum इधर, ठीक है. तो और यहाँ पे जो है हमारा आएगा एक, इसकी जो सिरोजा है, it'll dip down and it'll make this thing over here. इसको हम कहते हैं pouch of Douglas. तो जब यहाँ हमारे पास endometriosis ज़्यादा आ गया है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा? ये देखें, ये यहाँ पे सर्विक्स आ गई ना, ठीक है. तो एक तो यहाँ पे जब endometriosis होगा तो there will be deep pain with intercourse, and there will be pain with defecation, ठीक है, because of this location right here, ठीक है. Then it says that endometriosis in distant sites can cause local symptoms. And I was really surprised when I read this: cyclical epistaxis with nasal passage deposits and cyclical rectal bleeding with bowel deposits. ठीक है, so this is also a possibility कि जिधर आपके पास वो implantation हुई है या जो भी of the endometrial tissue,
तो वहाँ से आपको लोकली भी ब्लीडिंग हो सकती है, एंड इट विल बी साइक्लिकल, इट विल योर ब्लीडिंग विल अकर ड्यूरिंग योर पीरियड्स, ठीक है। ओके, अब डायग्नोसिस का कैसे होता है? इसका डायग्नोसिस इनफैक्ट इसको डायग्नोस करने में साल लग जाते हैं। बुक में लिखा था ऑन एवरेज 6 years लग जाते हैं, बिकॉज इसको डायग्नोस करना इतना जो है वो टफ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम लोग एक तो पहले हिस्ट्री ऑब्वियसली आती, तो फिजिकल एग्जामिनेशन पे आपने जैसे स्पेकुलम एग्जामिनेशन कर लिया, तो इट्स वेरी वेरी पॉसिबल कि आपको जो है वो वेजाइना या एंटीरियर पोस्टीरियर फॉर्निस आपने चेक कर ली, सब कुछ चेक किया, वो नॉर्मल मिले, ठीक है ना। पॉजिटिव एग्जामिनेशन की कुछ फाइंडिंग्स भी मिल सकती हैं, फॉर एग्जांपल थिकनिंग हो सकती है, या नॉड्यूलरिटी होती है ऑफ द यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स, टेंडरनेस हो सकती है इन द पाउच ऑफ डगलस, there could be an adnexal mass on when you examine the abdomen. Yeah, fixed retroverted uterus. So I already talked to you about what it means to have an adnexal. So I'll just show you. So this is the bladder again, okay? Or the uterus is supposed to be like this, okay? It's supposed to be antiverted. It's supposed to be towards the anterior side. Or ये जो the this is the cervix, and then this is the vagina, and it comes like this, ठीक है। And I want you to note, खैर इसमें तो सही नजर नहीं आ रहा, but there will be a 90-degree angle between the uterus का plane और इसका plane, ठीक है। This should be a 90-degree angle, ठीक है। This is your vaginal, yeah. This is the way the uterus is supposed to be. If suppose the uterus is retroverted के लिए मैं एक different color use करती हूँ. If the uterus is this way, ठीक है, और ये पीछे हमारे rectum है, तो this could either mean it could be normal, but this is normal in very few people. It most usually means कि यहाँ पे कोई ऐसी adhesions हैं जो इसको rectum के साथ चिपकाए रख रहा है, जिसकी वजह से यूट्रस पीछे आ गया। अब वो एडिशंस बहुत सारी वजह से भी हो सकती है, लेकिन इसका एक कॉज जो है एंडोमेट्रियोसिस भी है, कि यहाँ पे एंडोमेट्रियल टिश्यू ने यहाँ भी पेनिट्रेट कर दिया, यहाँ भी पेनिट्रेट कर दिया, और इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, चिपका दिया, ठीक है। तो इस वजह से रेट्रोवर्टेड हो जाता है। अच्छा, पेल्विक टेंडरनेस अलोन इज नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। और डीडीज में हमारे पास क्या आ सकता है, जो अभी मैंने आपको बताया रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी ऑफ यूट्रस होगी या फिर एंटी रेट्रोवर्टेड होगा, तो उसमें क्रॉनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज आ सकता है। उसके अलावा वी कैन हैव कोई ओवेरियन या कोई सर्विकल मेलिग्नेंसी, ठीक है, जिसकी वजह से वो एडिशंस बन गई हैं और यूट्रस जो है पीछे चिपक गया है, ठीक है। क्या था हमारे पास डीडीज में, ऑफ यूट्रस दैट इज नॉन मोबाइल, इसमें क्रॉनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एंड ओवेरियन या सर्विकल या कोई यूट्राइन मेलिग्नेंसी, ठीक है, एनी मेलिग्नेंसी, ठीक है। फिर अल्ट्रासाउंड करते हैं हम उसके बाद। अब हमने सारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर लिया, एब्डोमिनल, पेल्विक, वेजाइनल, ठीक है, सब एग्जामिनेशन कर लिया। उसके बाद हमने अल्ट्रासाउंड करना है। द ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे यू कैन डिटेक्ट एंडोमेट्रियोसिस, स्पेशली अगर वो ओवरीज में है, ठीक है। इसको हम एंडोमेट्रियोमास या फिर चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, वी ऑलरेडी नो दिस। लेकिन उससे अगर छोटा कोई लीजन है तो इसको डिटेक्ट करना जो है मुश्किल हो जाएगा ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे। नाउ दे सेड कि sometimes the ovaries they fix together or to the back of the uterus, so we call them kissing ovaries, and they add strength to the diagnosis, ठीक है। तो when the ovaries are also fixed either together or to the back of the uterus, you call this kissing ovaries, और इससे जो है इसके diagnosis में हेल्प होती है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक इट्स गोना बी डिफिनिटिव, बट आपकी काफ़ी ज़्यादा तक वो जो आपके सस्पिशन होता है वो कंफर्म होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। देन देयर इज इफ देयर इज रेक्टल एंडोमेट्रियोसिस, इफ यू सस्पेक्ट इट, ठीक है, तो फिर आप ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से उसको भी विजुअलाइज कर सकते हैं विद इन द रेक्टम। एंड अगेन अगर आपके पास ये सब स्कैन्स नॉर्मल भी आ जाए, आपके पास सब एग्जामिनेशन नॉर्मल भी आ जाए, it doesn't exclude endometriosis, it just means that you can't see it, ठीक है। but then again it might be something else as well, तो इसलिए इसके diagnosis में इतना टाइम लग जाता है।
आई ऑलरेडी टोल्ड यू एवरेज पे 6 years लग जाते हैं इसके डायग्नोसिस में पहुंचते पहुंचते। फिर आप MRI भी कर सकते हैं। MRI कैन डिटेक्ट लीजन्स अप टू मोर देन 5 millimeters इन साइज, ठीक है, और ये डीप टिश्यूज में देख सकते हैं, स्पेशली द रेक्टोवेजाइनल सेप्टम, राइट। और ये सर्जरी से पहले यूजुअली करते हैं टू लुक फॉर टू सी लाइक टू प्लान द सर्जरी। Alright, then we have a laparoscopy and ये traditional method है। इसके ऊपर हम diagnosis भी करते हैं, इसके ऊपर हम अगर कोई treatment देनी हो तो वो भी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, 3 तरीकों से हमारे पास नजर आ सकती है endometriosis। ये figure 11.3 में बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। Oops, what have I done? Yeah, this one. Figure 11.3 में we can have either red lesions on the peritoneum, ठीक है, so this is an example in A. Then we can have black matchstick lesions. So this is the example here. Now I personally don't see any matchsticks in this, but I think what they mean is this black bits, जैसे हम matchstick जला के और उसका जो black bit आप कहीं लगा देते हैं, maybe that's what they mean. Then we can see white fibrous lesions. So it looks pretty similar to here, this one as well, fibrous lesions हुई। ठीक है, so these are 3 ways that you can see it: red lesions, black mastic lesions या white fibrous lesions। फिर इनको क्या, आपने लैप्रोस्कोपी की, आपने इनको ले लिया बायोप्सी के लिए, ठीक है, बायोप्सी पे आपका डायग्नोसिस भी कंफर्म हो जाएगा। और ऑब्वियसली आपने अगर ये लीजन अब देख ही ली है तो आप उसको उसकी सर्जिकल डायथेरेमी कर सकते हैं या उसकी एक्सिजन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप इसकी स्टेजिंग भी करवा सकते हैं उस पॉइंट पे, टू सी के डिजीज कहाँ तक पहुंचा है। And then you can also check the patency of the fallopian tubes. So these are all the advantages of laparoscopy over the other methods of trying to diagnose this condition, ठीक है। फिर बायोमार्कर्स की हेडिंग में लिखा है कि they've tried to use biomarkers for the diagnosis, but उसका कोई फायदा नहीं अभी तक मिला, ठीक है। Then endometriosis and infertility. Now we've already looked at how patients, okay, we haven't actually, because subfertility का lecture में audio ही नहीं थी। Endometriosis जब होता है तो females they complain in difficulty in conceiving, ठीक है, और it really depends on the stage of the endometriosis and the other factors that are present along with it, ठीक है। More severe stages of endometriosis में commonly there's anatomical distortion, ठीक है, मतलब implantation में obviously मसला होगा, uterus का जो है वो shape नहीं सही होगी, फिर periodontal adhesions हो सकती हैं, ovarian tissue जो है वो destroy हो सकता है। obviously जब ovarian ये cyst बनती है, chocolate cyst बनती है, endometrioma बनता है, तो normal जो ovarian tissue है उसको वो यू कैन से साइड पे करके बनता है, ठीक है, तो वो उसके लिए वो उसको डैमेज करता है। अच्छा, एंड देन उसकी जो है ट्रीटमेंट इसकी कैसे करनी है। अगर हम सिर्फ एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करेंगे मेडिकली तो उससे कोई फर्टिलिटी इम्प्रूव नहीं होगी ख़ास, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर्जिकल एब्लेशन या एक्सिजन करनी पड़ेगी, और ये हम माइल्ड या मिनिमल एंडोमेट्रियोसिस के लिए कर सकते हैं, और ये इससे फर्टिलिटी के चांसेस इम्प्रूव होते हैं। अगेन अगर हम क्या कहते हैं, हमने देखना है कि ये स्पेशली जो ओवरी के अंदर चॉकलेट सिस्ट है, हमने देखना है कि हमने उसको या सिर्फ ड्रेन करना है या फिर हमने उसको पूरा का पूरा एक्सरसाइज करना है अलॉन्ग विद इट्स लाइनिंग। इसका ये है कि हमने ओवेरियन टिश्यू को जितना डैमेज होगा उसको हमने असेस करना है। तो फॉर दिस वी विल हैव टू गो टू अ प्रॉपर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, और उनके साथ जो है मिलके इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो अगर माइल्ड है एंडोमेट्रियोसिस तो उसको आप सर्जिकली अब्लेट कर सकते हैं या मतलब एक्सिजन कर सकते हैं, लेकिन अगर सिवियर फॉर्म है तो उसको आपने जो है एक दूसरी अप्रोच से लेना है, ठीक है। फिर मैनेजमेंट, जो बेसिक मैनेजमेंट है, एक तो वी ऑलरेडी नो कि देयर इज साइक्लिकल पेन, तो उसके लिए हम एनाल्जेसिक्स देते हैं एंड हार्मोनल ओवेरियन सप्रेशन भी दे सकते हैं। तो मेडिकल ट्रीटमेंट हम कब शुरू करते हैं, व्हेन वी हैव प्रिज्यूम्ड एंडोमेट्रियोसिस, and even if the clinical exam and the transvaginal ultrasound are normal, tabhi if we
feel that she does have endometriosis तो हम treatment शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर 3 to 6 months after management, after medical treatment, कोई आपको फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा, कोई उनकी पेशेंट की इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, तो आप इन्वेजिव लैप्रोस्कोपी की तरफ जाएंगे। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसके साथ देयर इज़ coexisting irritable bowel syndrome and constipation. This is present in up to 80% of cases, और ये भी आपने साथ साथ ट्रीट करने हैं, ठीक है। अच्छा, मेडिकल थेरेपी में ये एनाल्जेसिक्स में हम लोग देते हैं एनसेड्स। एनसेड्स का ये फ़ायदा, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो हैं वो एनाल्जेसिक्स हैं, तो इससे जो डिस्मेनोरिया था, जो पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन थी, वो भी काफ़ी कम हो जाती है, पेल्विक पेन भी काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन बाकी इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। एंडोमेट्रियोसिस एज अ डिजीज़, इट्स जस्ट सिम्प्टोमेटिक रिलीफ, ठीक है। कोडेन एंड ओपिएट्स जो हैं हमने अवॉइड करने हैं, बिकॉज इसके साथ साथ जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसके सिम्टम्स को ये वर्स कर देगी और उनके पेल्विक पेन के सिम्टम्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो अवॉइड कोडीन एंड ओपिएट्स। अच्छा, the best thing that we can give in this the medical management of endometriosis is combined oral contraceptives or the long acting long acting reversible, I forgot what they're called, LARCs, ठीक है। अच्छा, so if they don't desire to conceive and if they don't have any contraindications for it, combined oral contraceptives should be used, ठीक है। इससे dyspareunia भी reduce होगा, dysmenorrhea भी reduce होगा, and all the other symptoms as well. एंड recommended ये है कि इसको हम इसको इस केस में, इस सिनेरियो में ट्राई साइकिल करें, ठीक है। तो टेक 3 पैकेट्स विदाउट अ ब्रेक एंड देन 12 वीक्स के लिए, एंड देन फॉर 1 वीक इट्स योर विथड्रॉल ब्लीडिंग टाइम, ठीक है। और इसका नॉर्मल साइकिल होता है कि 21 डेज के लिए लेते हैं और 7 डे जो है विथड्रॉल ब्लीड के लिए छोड़ते हैं। If symptoms persist, the diagnosis should be reviewed, और दूसरी condition को आपने कैसे treat करना है, IBS and constipation को आपने treat करना है by encouraging a high fiber diet and adequate fluid intake, ठीक है। Then you can also use progestogens अगर किसी को risk factors हैं combined oral contraceptives के, because combined oral contraceptives have both estrogen and progestogen. तो we know that estrogen की वजह से अक्सर जो है मिसाइल हो रहे हैं। तो for example the female is above age 35 and she is smoking, तो उसके अंदर combined oral contraceptives जो हैं वो होंगे contraindicated, तो उस केस में we can give progestogens as well. तो इसके अंदर they've written the long acting reversible contraceptives, the LARCs use कर सकते हैं। We can use depomedroxyprogesterone acetate, levonorgestrel intrauterine system, ये सब use हो सकता है, ठीक है। Then we have gonadotropin releasing hormone agonists. You can use these as well, लेकिन ये हम जो है long term use नहीं कर सकते, क्योंकि इसका more than 6 months नहीं use कर सकते, because इससे osteoporosis होने का chance ज़्यादा हो जाता है। Obviously अगर आप GnRH agonist दे रहे हैं तो it will kind of like give you the same things as menopause, ठीक है, because ये उसको पिट्यूटरी को suppress कर देगा बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल जैसे जो menopause में issues आना शुरू हुए थे, वो इसमें भी वही issues आना शुरू होंगे, तो you can't use this as long term. फिर other hormonal agents के आप बस नाम याद कर लें, you can use danazol and gestanon, ये ovarian suppressive agents हैं। उसके अलावा aromatase inhibitors जो हैं वो काफ़ी popular होना शुरू हो गए, तो these are the newer classes of drugs. Then in surgical treatment, ठीक है, we have two main types. Either we have fertility sparing surgery या hysterectomy and oophorectomy, ठीक है। For the first one we can do it laparoscopically, and हम लोग क्या करते हैं, अगर chocolate cyst है तो उसको हम drain कर सकते हैं inner cyst को, या फिर excise कर सकते हैं to reduce the risk of recurrence. लेकिन obviously we have to assess the damage to the ovarian tissue that will happen at this point. अगर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करें, ऑलरेडी टोल्ड यू, हम इसको सिर्फ ड्रेनेज परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ड्रेनेज ओनली मे बी कंसिडर्ड इन दिस केस, एंड इफ देयर इज डिपॉजिट्स ऑफ लाइक सुपरफिशियल पेरिटोनियल एंडोमेट्रियोसिस, इसको हम एब्लेट कर सकते हैं या एक्ससाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग लैप्रोस्कोपी यूजिंग डायाथर्मी या लेजर एनर्जी, ठीक है। और रिकरेंस के रिस्क जो हैं कंजर्वेटिव सर्जरी के बाद, देयर इज हाई 30%, सो देयर प्रीटी कॉमन। और इसके साथ साथ मतलब आपने जब सर्जिकल ट्रीटमेंट करी तो इसके साथ साथ आपने मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उनकी शुरू कर देनी है,
ठीक है, just give the medical treatment as well to reduce the risk of recurrence. Then ultimately you can do hysterectomy and oophorectomy. ठीक है, तो all the visible endometriosis lesions जो हैं वो निकल जाएंगी, और ये उन ladies में है who have completed their family, who do not wish to conceive again obviously. और ज़रूरी भी नहीं है, आपने पेशेंट को बताना है कि ज़रूरी नहीं है कि इसको करने के बाद भी आपको क्योर मिल जाए, बिकॉज इट कुड बी के मतलब आपको पता है सिर्फ यूट्रस के बाहर और इसके बाद तो नहीं था ना वो एंडोमेट्रियोसिस, लाइक इट कुड बी ऑन द पेरिटोनियम, इट कुड बी ऑन अदर प्लेसेस, और वो भी ये है कि वो वहाँ से because we're not sure of the exact reason why this happens, whether this is an implantation or whether this is a Malaysian tissue which other tissue which has become उसकी क्या कहते हैं वो de-differentiate जैसे हो जाता है, तो वो हुआ है, तो it could be कि उनके symptoms ना क्योर हों और recurrence फिर भी हो जाए in other areas. फिर you can use hormone replacement therapy for this, मतलब after you have done the surgery. ठीक है, so this is the way to deal with endometriosis. Excuse me, मेरी ना आवाज़ बिल्कुल ही बैठ गई है आज तो, but I'm just gonna continue just like this. अच्छा, I just want to tell you guys a little bit about hysterectomy and the types that we have. So you know what, instead of drawing it, मैं आपको ना picture ही दिखा देती हूँ Google करके. Just give me a minute. So we basically have hysterectomy, we have subtotal hysterectomy, ठीक है, उसकी भी types हैं. First आप types को कैसे करोगे? Hysterectomy, oops, what kind of spelling is this? Types. अच्छा, पहले हमारे पास आती है vaginal hysterectomy and abdominal hysterectomy. ठीक है, vaginal हम through the vagina जो है hysterectomy करते हैं, और ये safer भी है और ये complication भी कम है, hospital time भी इसका कम है. Can you guys see the screen, the hysterectomy pictures? No, we can't. All right, I'm glad I asked for now. मैं सब उस पे दिखा रही होती. All right, let's turn on the screen. All right, so there are two types. Again, I told you vaginal है, abdominal है. तो उसका हम table and fact जो है वो end पे देख लेते हैं या कल कर लेंगे. I just want to tell you, ये तो पिक्चर ही बहुत छोटी ऐसे नजर आ रही है, तो we have, trying to look for a good one. ठीक है, तो we have partial hysterectomy, इसमें सिर्फ ये एरिया रिमूव हो रहा है. देन इसमें इन्होंने जो है टोटल दिखा दिए. देयर इज ऑल्सो बेसिकली पार्शियल एंड सब टोटल में थोड़ा सा ही फर्क होता है, एंड सम पीपल वो फर्क भी नहीं करते. सब टोटल हिस्टेरेक्टमी में यू डोंट रिमूव द सर्विक्स एरिया, और आप ये बाकी का एरिया रिमूव कर देते हैं. ठीक है, टोटल हिस्टेरेक्टमी आप पूरा एरिया इंक्लूडिंग द सर्विक्स जो है वो रिमूव कर देते हैं. फिर यू कैन डू हिस्टेरेक्टमी एंड बायलैटरल ओवरेक्टमी, तो यू कैन जस्ट रिमूव द ओवरीज. फिर you can do hysterectomy and bilateral salpingo oophorectomy. I think that's what it's called. Yeah, and then you remove all of this area, तो आपके पास ये सिर्फ vaginal vault जो है वो बच जाएगा. ठीक है, I'm pretty sure I remember googling this and finding a very good picture. तो पता नहीं वो picture किधर गायब हो गई है. Should have downloaded it. खैर, so we'll just look at another picture to see if we can with bilateral oophorectomy. No, we don't see a good picture. But like this is the concept. I want you to remember कि total के अंदर हम complete uterus को remove कर रहे होते हैं, and subtotal के अंदर the cervical area is not removed. ठीक है. अच्छा, I'm just gonna take a small break because of my throat. So we're just gonna move on to the next thing after this. Asherman syndrome, page 171 पे. It's pretty easy, but just take a 1 minute break. ठीक है.
All right, let's get back to this. Mm, where is it? Right, can you guys see this? Asherman syndrome. This is on page 171. ठीक है. It's a very easy syndrome to remember, but it's pretty high yield. ठीक है. इसमें क्या है? Irreversible damage होता है. Okay, irreversible damage होता है of the basal endometrium. ठीक है. उसके बाद जब अब हमें पता है कि we have the basal layer and the compactum layer, और compactum layer जो है वो grow होके वो shed हो जाती है. तो जब बेजल लेयर हमारी जो है वो चली जाती है तो उसके बाद जो रीजनरेशन है वो नहीं हो पाती, बिकॉज जो रीजनरेटिव कैपेबिलिटीज थी वो थी ही बेजल लेयर में. ठीक है. तो इसकी वजह से क्या होता है, देयर इज फाइब्रोसिस एंड देयर इज एडिशन फॉर्मेशन विद इन द यूट्रस, और इसको हम एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं. ठीक है. इसकी वजह से देयर इज रिड्यूस्ड या एब्सेंट मेंस्ट्रुअल शेडिंग एंड देयर इज सब फर्टिलिटी. ठीक है. ऑब्वियसली हमें एक अच्छी एंडोमेट्रियल लाइनिंग चाहिए होती फॉर इम्प्लांटेशन, तो वो ही जब नहीं है, वो फाइब्रोज्ड है, तो सब फर्टिलिटी भी होगी एंड इट्स नॉट एबल टू रीजनरेट, तो मेंस्ट्रुअल शेडिंग भी नहीं होगी. ठीक है. इसके अंदर क्या होता है, इसकी कॉजेज क्या हैं? कॉजेज में एक तो मेन है हमारे पास यूट्राइन इन्फेक्शन. ठीक है. एंडोमेट्राइटिस कैन कॉज दिस. देन आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर एज वेल, वी डिस्कस दिस, कि जब डीएनसी करते हैं, डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज करते हैं ऑफ द यूट्राइन कैविटी, तो उसके अंदर भी हम एक्सेसिवली टिश्यू को रिमूव करने का चांस होता है, उसका रिस्क होता है. ठीक है. तो ये हम कब करते हैं कि कोई मिसकैरेज हुआ हो, एक सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर, तो हमने जो है रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन निकालने के चक्कर में उसको बहुत ज़्यादा जो है वो क्यूरेट कर दिया, और स्पेशली इस स्टेट में सॉफ्ट होती है यूट्रस, तो इवन द मायोमेट्रियम तक जो है आप गलती से एक्सकवेट कर सकते हो कंटेंट्स को. ठीक है. तो इसके लिए प्रिवेंट आपने कैसे करना है, आपने कोई कंजर्वेटिव या लेस ट्रॉमेटिक सर्जिकल अप्रोचेस लेनी है टू मैनेज द रिटेन पार्ट्स ऑफ कंसेप्शन, एंड स्पेशली आपने जो है किसी स्किल्ड बंदे से ये ना डीएनसी करवानी है, हर कोई नहीं ये कर सकता. ठीक है. दे हैव टू बी स्किल्ड एंड प्रॉपर्ली ट्रेन्ड इन दिस. ठीक है. फिर ट्रीट एशरमैन सिंड्रोम आप कैसे करते हो? आप इसके लिए देयर इज अ प्रोसीजर कॉल्ड एडिजियोलाइसिस. ठीक है. तो इट्स मेंशन राइट हियर. एडिजियोलाइसिस से आप क्या करते हो, हिस्टेरोस्कोपिकली आप एंटर करते हो और आप मैनुअली ब्रेक डाउन करते हो इंट्रायूट्राइन एडिशंस को. अगेन ये बहुत ही ज़्यादा कोई स्किल बंदा कर सकता है, और इसमें फिर रिस्क फर्दर यूट्राइन ट्रॉमा के भी होते हैं. ठीक है. तो दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर. तो the best is obviously to prevent Asherman syndrome from ever happening. उसके अलावा हम लोग कभी कभार वी वांट टू डिलिबरेटली डिस्ट्रॉय द बेसल लेयर. ठीक है. वी वांट टू कॉज दिस सिंड्रोम. अब वो कब होता है, जब कोई हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा, एंड वी नो दैट द फीमेल हैज़ कंप्लीटेड हर फैमिली, शी डज नॉट विश टू कंसीव अगेन. तो उस केस में हम उनकी एंडोमेट्रियल एब्लेशन भी कर सकते हैं. दिस इज एज अ ट्रीटमेंट फॉर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. ठीक है. लेकिन मोस्ट द टाइम्स एशरमैन सिंड्रोम इज समथिंग दैट फीमेल्स डोंट वांट. तो फॉर दिस इसका बेस्ट तरीका इसको प्रिवेंट करने का ही है, बिकॉज की ट्रीटमेंट जो है इट्स वेरी टफ, एंड इट कुड बी पॉसिबल कि जो बाय द वे एडिजियोलाइसिस जो है वो बहुत उसके लिए कैंडिडेट्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, ये हर किसी में नहीं हो सकता. समटाइम्स बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है तो उसके बाद वो सही नहीं हो सकता. ठीक है. तो दिस वाज एशरमैन सिंड्रोम. अब नेक्स्ट हमारे पास है फाइब्रॉइड्स, एंड सीरियसली हम लोग फाइब्रॉइड्स पता नहीं कब से पढ़ रहे हैं. Repeat it please. Which part exactly? Adhesiolysis wala? I'll just go over the whole thing again, just real quick. ठीक है. एशरमैन सिंड्रोम क्या है? जो बेजल लेयर थी हमारी एंडोमेट्रियम की वो हो गई है डैमेज इरिवर्सिबली. इसकी वजह से जो हमारा एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो रीजनरेट अब नहीं हो सकती. ठीक है. तो अब वो डैमेज हो गया, तो जब भी डैमेज होता है किसी भी एरिया में वहाँ फाइब्रोसिस हो जाती है, और इस केस में फाइब्रोसिस एंड एडिशंस बन जाती हैं. ठीक है. तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ रफ विजुअल स्केच ताकि हमें आसानी हो याद करने में. सो दिस इज आवर यूट्रस, और ये उसकी सपोज ये लाइनिंग है. बाय द वे लाइनिंग इस तरह कभी नहीं होती, हमेशा यूट्रस की इस तरह होती है, बट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस. ठीक है. यहाँ पे इसकी बेजल लेयर थी, उसने रीजनरेट होकर बड़ा होना था इस तरह. फिर जब हमारा पीरियड होता है तो इट लाइक दिस फॉल्स ऑफ. ठीक है. जो एक्सेसिव लेयर थी कॉम्पैक्टम या जो भी, तो इट फॉल्स ऑफ, एंड दिस इज द नॉर्मल साइकिल.
तो जब ये वाली लेयर जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो यहाँ फाइब्रोसिस होगा, ठीक है। एक तो ये डीजनरेट नहीं करेगी तो शेड होने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हो सकती, ऑब्वियसली आपको चाहिए एक अच्छी एंडोमेट्रियम जिसमें अच्छी वैस्कुलर सप्लाई है। तो ये तो जनरेट ही नहीं होगी तो फिर इम्प्लांटेशन ही कहाँ से होगी, ठीक है। तो ये सब फर्टिलिटी भी कॉज करती है ये कंडीशन, एंड ये मेंस्ट्रुअल शेडिंग भी मतलब रिड्यूस हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है। ऑलराइट, इसमें आपके पास कॉजेज़ क्या थी? यूट्राइन इन्फेक्शन हो सकती है या फिर यू कुड डू ओवरज़ीलस क्यूरेटाज। तो मतलब जब हम पोस्टपार्टम हेमरेज होती है, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज हो रही है या मिसकैरेज हुआ है या कोई रिटेन पार्ट्स ऑफ कंसेप्शन है, हमने उसको यूट्रस को जो है वो क्लीन आउट करने के लिए जो है यहाँ से इसको स्क्रैप किया, ठीक है। इसके दिस इज द फॉर एग्जांपल यहाँ से एंटर हो रहे हैं और यहाँ से जो है उसको स्क्रैप कर रहे हैं हम। तो इवन इस स्टेट में यूट्रस इतना सॉफ्ट हुआ होता है तो गलती से इवन मायोमीट्रियम तक हम इसको स्क्रैप कर सकते हैं, हम इतना ज़्यादा चंक भी उसका गलती से उतार सकते हैं, ठीक है। डायलिटेशन इन क्यूरेटाज में, डीएनसी जिसको कहते हैं। तो ये कब होता है? मिसकैरेज हुआ हो, सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज हुई हो, या इस केस में बहुत सॉफ्ट यूट्राइन स्टेट होती है, तो जब हम रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन को निकालने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्क्रैपिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ फाइब्रोसिस एंड एडिशंस बन जाती है। इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे? हम जो रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है उसको निकालने के लिए कोई कंजर्वेटिव या लेस ट्रॉमेटिक सर्जिकल अप्रोचेस यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड also you have to have a skilled specialist for the DNC, right? उसके लिए ट्रीटमेंट एशरमैन सिंड्रोम की है, इज कॉल्ड एडिजियोलाइसिस। सो अगेन हम लोग एंटर करेंगे थ्रू हियर विद अ हिस्टेरोस्कोप, और यहाँ पे जहाँ जहाँ जैसे फॉर एग्जांपल अच्छा ये एक और मैं बना रही हूँ, दिस इज द इनसाइड ऑफ द यूट्रस बाय द वे। तो यहाँ पे जब वो फाइब्रोसिस हुई होगी तो इस तरह भी हो सकता है यहाँ फाइब्रोसिस हो के ये इसके साथ एडिशन हो जाए, तो ये तो दोनों चिपक ही गए हैं ना साथ, ठीक है। तो इसको आपने जो है वो मैनुअली जो है इसको यूं डायसेक्ट करना है। तो आप यहाँ से हिस्टेरोस्कोपिकली एंटर होंगे और आप इस एडिशन को जो है वो सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज सच अ डिफिकल्ट प्रोसीजर, और इससे फर्दर ट्रॉमा भी हो सकता है टू दिस लाइनिंग। तो एडिजियोलाइसिस जो है वो सिर्फ कुछ कैंडिडेट्स में करते हैं और इससे जो है और ट्रॉमा का भी इशू होता है। उसके अलावा हम कभी कभार जो है हम एब्लेशन करवा के हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में हम एंडोमेट्रियल एब्लेशन करवा देते हैं, मतलब खुद कर देते हैं ताकि फाइब्रोसिस हो जाए और वो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ना हो। एंड ऑब्वियसली ये ट्रीटमेंट हम उनमें यूज़ करते हैं जिनकी फैमिली कंप्लीट होती है, हु डू नॉट विश टू कंसीव अगेन, ठीक है। तो दिस इज एशरमैन सिंड्रोम। देन वी हैव फाइब्रोसिस, नॉट फाइब्रोसिस, एक्सक्यूज मी, फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स हैं, हमें पता है ये क्या है, ठीक है। देयर कॉल लियोमायोमास, ये वेल डिमार्केटेड फर्म वर्ल्ड ट्यूमर होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं। यू वुड बी सरप्राइज्ड, लाइक जब जब मैं वार्ड में थी तो हर हर दिन तो कम से कम हम फाइब्रॉइड का पेशेंट देखते ही थे, ठीक है। इट्स दैट कॉमन, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है नली पैर्स या ओबीस वुमेन में। तो सर सुहेल ने एक बड़े मज़े की बात बताई थी हमें। ही इज़ लाइक I don't know. I can't remember the exact words, but it was like when a woman, when the uterus does not have a baby for a long time, it tries to mimic that effect by getting a fibroid. Now, this is a very odd thing, और उन्होंने इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया था, मैंने इतने मज़े से नहीं बताया. But if someone is nulliparous or if someone has not had children, for example, for 10 years, it's been like quite some time, ठीक है, या फिर if she is obese, तो then she has a high risk of having a fibroid. अच्छा, fibroids are classified according to their location, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइब्रॉइड्स। तो ये हमारे पास सब म्यूकोजल हैं, ठीक है, राइट अंडर द म्यूकोजा, फिर इंट्राम्यूरल हैं, फिर सब सिरोजल हैं, एंड देन वी आल्सो हैव सर्विकल फाइब्रॉइड्स। अच्छा, अब सिम्टम्स क्या कॉज होते हैं फाइब्रॉइड से? वी हैव abnormal uterine bleeding, ठीक है, it could be heavy menstrual bleeding, it could be intramenstrual bleeding as well, ठीक है, reproductive failure, और ये मोस्टली ये सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स में होता है। इम्प्लांटेशन नहीं होने देते ना, देखिए अंदर से कितना abnormal हुआ है इसका शेप यूट्रस का बिकॉज ऑफ दिस। सबसिरोजल फाइब्रॉइड में ऐसे इम्प्लांटेशन का ज़्यादा वो नहीं होता इफेक्ट,
लेकिन सब म्यूकोजल में हो सकता है, और अगर इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो ऑब्वियसली वो चेंज कर देता है शेप ऑफ द लाइनिंग ओवर हियर. फिर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेज होते हैं, बल्क इफेक्ट्स हो सकते हैं एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स इन द पेल्विस. ठीक है, इट प्रेसेस ऑन, फॉर एग्जांपल अगर ये सबसेरोजल फाइब्रोइड जो है ये रेक्टम की तरफ, इट्स प्रेसिंग ऑन द रेक्टम, तो मे बी यू आर गेटिंग कॉन्स्टिपेशन. ठीक है, if it's pressing on the bladder, then maybe you're getting urinary urgency. ठीक है, तो these are all the symptoms. So pressure and pain, bladder and bowel dysfunction, and abdominal distension. These are all the things that you can see with the fibroid. And जब आप abdominal examination करेंगे तो आपको fibroid feel भी हो सकता है. ठीक है, जब आप बायोमैनुअल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको फाइब्रोइड फील भी हो सकता है. अच्छा, अब इसकी क्या टाइप्स थी हमारे पास? वी हैव ए रेड, देन वी हैव हाईलाइन, एंड देन वी हैव सिस्टिक. ठीक है, एंड रिमेंबर फाइब्रोइड जो है वो बिनाइन ट्यूमर्स हैं. ठीक है, एंड देर एस्ट्रोजन डिपेंडेंट अगेन. तो यू कैन थिंक कि हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट में दे गेट एनलार्ज जैसे प्रेगनेंसी में. ठीक है, और इसकी भी इट मे बी के विद इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकती है, लेकिन इट मे बी के ये साइक्लिकल पेन के साथ भी प्रेजेंट करें, प्राइमरली बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है. अच्छा, रेड के अंदर क्या है, हेमरेज एंड नेक्रोसिस हो जाता है, और ये हो सकता है मिड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, और ये एक्यूट पेन के साथ प्रेजेंट हो सकता है. तो रेड कब होता है कि जब जो है फाइब्रोइड इतना बड़ा हो गया है कि उसकी जो है ब्लड सप्लाई उसको मेंटेन नहीं कर पा रही, तो फिर हेमरेज और नेक्रोसिस वहाँ शुरू हो जाएगा. ठीक है, रेड टाइप. फिर हाईलाइन टाइप में क्या है, इसकी सॉफ्टनिंग हो जाती है, लिक्विफैक्शन हो जाती है, दिस इज एसिम्प्टोमेटिक. देन द सिस्टिक वन इज आल्सो एसिम्प्टोमेटिक. तो मतलब आप नोट करें कि पेन जो है सिर्फ वो रेड वाले में हो रहा था, इट्स आल्सो एसिम्प्टोमेटिक. इसमें बस सेंट्रल नेक्रोसिस हो जाती है, तो सिस्टिक स्पेसेस बन जाती है सेंटर में. ठीक है, एंड वेरी वेरी रेयरली जो है ये मेलिग्नेंट या सार्कोमेटस डीजनरेशन हो सकती है इसमें. राइट, और ये हमें मेलिग्नेंसी की कब सस्पेशन होगी कि जब पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में रैपिडली जो है साइज ऑफ द फाइब्रोइड वो इंक्रीज हो रहा है. तो हमारे पास 3 टाइप्स थी, रेड, हाईलाइन एंड सिस्टिक. एंड पेन किस में होती है हमारे पास? रेड वाले में, जो हेमरेज एंड नेक्रोसिस जिसमें. ठीक है, तो ऑलरेडी हमने क्लिनिकल फीचर्स देख ली हैं. ठीक है, यूजुअली फाइब्रोइड्स आर एसिम्प्टोमेटिक, तो ये गलती से मिल जाते हैं. ठीक है, जैसे उनका फॉर सम रीजन का अल्ट्रासाउंड किया तो देयर वाज अ फाइब्रोइड, बट अगर वो सिम्टम्स नहीं कॉज कर रहा तो यू जस्ट लेट इट बी. ठीक है, अगेन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आपने किया, आपको फील हुआ, बट इट्स नॉट कॉजिंग एनी सिम्टम्स, तो लेट इट बी. ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स, कोई डिबिलिटेटिंग सिम्टम्स आ रहे हैं, देन यू गोइंग टू गो फॉर द ट्रीटमेंट. ठीक है, दे में इंक्लूड मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस जैसे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, स्पेशली प्रेशर या बल्क सिम्टम्स हो सकते हैं, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, एंड इवन इनफर्टिलिटी हो सकती है इनकी वजह से. पेन इनके अंदर यूजुअली नहीं होती अनलेस ये रेड बन जाए, एक्यूट रेड डीजनरेशन हो जाए, या फिर कोई टोर्जन हो जाए पेडंकुलेटेड फाइब्रोइड की. टोर्जन इज जैसे कि पेडंकुलेटेड फाइब्रोइड इज जैसे कोई जैसे आपने वो बड्स देखे होंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर जो बड्स निकलते हैं, तो उस तरह एक चीज, आई विल जस्ट ड्रॉ इट फॉर विजुअल. तो ये यूट्रस है और इसके ऊपर से फॉर एग्जांपल ये यूं बड निकला हुआ है, ये हमारा फाइब्रोइड है. ठीक है, और ये जो है ये अपने ही एक्सिस पे यूं घूम जाएगा, तो ये वाला पार्ट जो है घूम जाएगा. एक्सक्यूज मी. सॉरी अबाउट दैट, रूम में कोई आ गया था. All right, let's get back to this. Yeah, there's no voice. Is she is the voice back? Can you guys hear me now? Yes, we can. Awesome. All right, तो I already told you this is what it means कि ये अपने axis पे जो है ये घूम जाएगा and then it will cause significant pain.
ठीक है. देन वी आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें सब फर्टिलिटी भी होती है बिकॉज ऑफ मैकेनिकल डिस्टॉर्शन, या इट कुड आल्सो occlude द fallopian tubes as well. ठीक है. व्हाट एल्स इसके अंदर है, इफ इनको ना रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होते हैं बिकॉज इसकी जो है ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा, वो एक बहुत बड़ी हो जाती है. ठीक है, ये ग्रो होके इसकी ब्लड सप्लाई बहुत रिच हो जाती है. तो इसको रिमूव करने से पहले वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट कि एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो जाए. एंड इस तरह भी हो जाता है कि इसको रिमूव करने के लिए जाते हैं, इतनी ब्लीडिंग हो जाती है कि आपको हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ जा सकती है. ठीक है. Then the risk of miscarriages are increased in this. I think I covered all of this. And it could also cause late pregnancy में अगर ये जो cervical या इस तरह fibroid है तो ये बेबी की लाई को भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली सेफेलिक कैसे होगी पोजीशन, यहाँ जगह ही नहीं है बेबी के हेड के लिए बिकॉज ऑफ द cervical fibroid, तो उसकी फिर लाई चेंज हो सकती है बेबी की. एंड पोस्टपार्टम हेमरेज का चांस बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द फाइब्रोइड. यूट्रस जो है वो inefficiently contract होगा, मतलब it's not getting that space to like contract, तो फिर वहाँ से PPH ज़्यादा हो जाएगा. अच्छा, अब एग्जामिनेशन में क्या क्या साइंस आपको मिल सकते हैं. आपको एनीमिया मिल सकता है बिकॉज ऑफ द ब्लड लॉस. फिर आपको विजिबल या पैल्पेबल एब्डोमिनल मास मिल सकता है फ्रॉम द पेल्विस. और बाय मैनुअल एग्जामिनेशन पे आपको enlarged, firm, smooth, irregular भी हो सकता है बट यूजुअली इट्स फर्म एंड स्मूथ एंड नॉन टेंडर यूट्रस जो है वो पैल्पेबल होता है. और अगर टेंडरनेस है तो इट सजेस्ट रेड डीजनरेशन. ठीक है, हमारे पास क्या तीन टाइप्स थी, रेड, हाईलाइन एंड सिस्टिक, राइट. अब इसका डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, हम इसमें वो सब कर लिया हमने. ठीक है, हमने हिस्ट्री ले ली, हमने सब एग्जामिनेशन कर लिया, हमें मास वगैरह सब मिल गया. उसके बाद हमने फुल ब्लड काउंट करना है उसके एनीमिया को चेक करने के लिए. फिर हमने अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो है उसको अच्छे से विजुअलाइज कर लेना है, तो इट विल बी इजीली सीन ऑन अल्ट्रासाउंड्स. तो दिस इज द टेस्ट्स वाला बॉक्स जिसको हम देख लेते हैं. ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में इट्स गुड फॉर डिटेक्टिंग एंड लोकेटिंग submucous fibroids and small intramural fibroids. Then the transabdominal ultrasound scan is good for detecting large intramural and subserosal fibroids. ठीक है, and excluding hydronephrosis secondary to pressure from fibroids obstructing the ureters. So it could be that the fibroids are obstructing the ureters and this is causing hydronephrosis. ठीक है. Then what was SIS? God knows. Good for detecting and locating submucosal fibroids and endometrial polyps. It'll come back to me. I just sometimes I forget the short forms. Hysteroscopy पे हम submucosal fibroids देख सकते हैं, endometrial polyps देख सकते हैं, और obviously इससे treatment भी आगे जा सकती है. फिर MRI के ऊपर any mass more than 5 millimeters जो है वो visualize हो जाता है. ठीक है, तो ऑब्वियसली फाइब्रॉइड्स आर यूजुअली मच बिगर देन दैट, तो वो MRI पे इजीली नजर आते हैं. और ये बिफोर यूट्राइन आगे हम ना इसकी ट्रीटमेंट ही देख लेते हैं ताकि इट डजंट गेट ऑल मिक्स्ड अप. अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है फाइब्रॉइड्स की. देयर इज मेडिकल ट्रीटमेंट. ठीक है. यूजुअली व्हाट हैपेंस इज अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो हम उनको ऐसे छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे अगर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है तो हम हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के रिलेटेड ही ट्रीटमेंट देंगे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. जैसे ये माइडीना दे सकते हैं, ट्राइनेक्सामिक एसिड, मेफेनामिक एसिड दे सकते हैं, कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दे सकते हैं. ठीक है, और ये सिर्फ उन केसेस में नहीं दे सकते. आई थिंक देयर इज अ वेरी नाइस दिस टेबल ओवर हियर, ये इस पेज पे है, पेज नंबर 175 पे. दिस समराइजेस ऑल द ट्रीटमेंट फॉर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स. तो हम इसी से इसको रीड दे देते हैं. ओके, सेलाइन इन्फ्यूजन, सोनोहिस्टेरोग्राफी. या आई डोंट थिंक ये मुझे अभी इस पॉइंट पे कभी याद आता बिकॉज ये मेरे ब्रेन में बिल्कुल से निकल गया था कि ये भी होता है. हमने आगे जो है ना वो भी करने हैं स्मॉल जो गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स हैं, तो इंशाल्लाह विल लुक एट ऑल ऑफ दोस. ठीक है ना, मेरी भी अच्छी वो रिविजन हो जाएगी उसमें. अच्छा, मेडिकल क्या था, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का हमने क्या देना था, हमने ये ट्राइनेक्सामिक एसिड देना था, एनसेड्स वगैरह दे सकते थे, या ये माइलिना और ये ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये सब कुछ. ठीक है. लेकिन ये कब नहीं दे सकते, दे आर लेस इफेक्टिव either in the presence of submucosal fibroids or uterus that is more than 12 weeks in size.
तो आपको ये वाली चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है, ठीक है, बिकॉज MCQ कभी कोई ऐसे अजीब से आए होते हैं, दे टेल यू अ सिनेरियो, और अगर उसमें सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स हैं या फिर यूट्रस मोर देन 12 वीक साइज है, तो ये जो सारी ऑप्शंस हैं इनको फिर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप फिर किसी और ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। प्रेजेंस ऑफ सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स हो या यूट्रस मोर देन 12 वीक्स इन साइज हो, तो फिर आप जो है ये वाली ऑप्शंस को नहीं लेंगे, हालांकि ये फर्स्ट लाइन ऑप्शंस हैं। ओरिजिनली दीज आर सपोज टू बी फर्स्ट लाइन ऑप्शंस, बट इन द केस ऑफ सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स और यूट्रस मोर देन 12 वीक्स इन साइज, दीज आर नॉट योर ऑप्शंस, ठीक है। These are the hormonal ones, तो इसमें it contains estrogen, ये initially जो है estrogen dependent fibroids की growth increase कर सकता है, फिर myelina से there is an increased likelihood of expulsion because submucosal fibroids की वजह से अगर cavity जो है वो बहुत enlarge हुई है, distorted हुई है, तो obviously वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। फिर we have GnRH and agonists, ये हम सिर्फ प्रायर टू सर्जरी यूज करते हैं टू रिड्यूस द फाइब्रोइड वॉल्यूम। अगेन आई कीप टेलिंग यू, GnRH एगोनिस्ट जो है वो आप परमानेंटली नहीं यूज कर सकते, ठीक है। फिर यूरिप्रोस्टाल एसीटेट भी यूज करते हैं, ये एक ऑयल मेडिकेशन है, इससे जो है फाइब्रोइड का वॉल्यूम हम प्रायर टू सर्जरी जो है वो कम करते हैं, ठीक है। और ये एक सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, यूरिप्रोस्टाल एसीटेट, ठीक है, सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, तो ये भी इट्स नॉट यूज लॉन्ग टर्म, और ये बिल्कुल GnRH एगोनिस्ट की तरह, ये बस हम सर्जरी से पहले यूज करते हैं टू रिड्यूस द फाइब्रोइड वॉल्यूम। अच्छा, अब सर्जरीज हमारे पास कौन कौन सी आती हैं? वी हैव द हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी, ठीक है, ये मिनिमली इन्वेजिव है, इट्स वेरी इजी टू डू, और इससे जो है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड फर्टिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है, और ये हम सब म्यूकस फाइबर्स के लिए यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली अगर हम स्टेरोस्कोप से अंदर जा रहे हैं थ्रू द वेजाइना एंड थ्रू द सर्विक्स, तो सब म्यूकस ही एक्सेस हो सकते हैं ना, दूसरे टाइप्स तो नहीं एक्सेस हो सकते आपके पास। फिर है मायोमेक्टमी, ये भी इट स्पेयर्स फर्टिलिटी स्पेयरिंग है, इट विल ट्रीट द हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड द बल्क सिम्टम्स। इसके लिए हमें लैप्रोटमी यूजुअली करनी पड़ती है, हमारे केस में तो हम लोग शायद मोस्टली लैप्रोटमी करते हैं, लैप्रोस्कोपिक अप्रोच भी यूज़ हो सकती है अगर स्मॉलर या फ्यूअर फाइब्रॉइड्स हैं, ठीक है। इसमें जो है इंट्राऑपरेटिव ब्लीडिंग का रिस्क हो सकता है वैस्कुलर फाइब्रॉइड से, तो उसकी वजह से हमें अनप्लान्ड हिस्टेरेक्टमी या पोस्ट ऑप अनप्लान्ड हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ सकती है। उसके अलावा पोस्ट ऑप जो है इंट्रा एब्डोमिनल एडिशंस भी होते हैं। विद एवरी एब्डोमिनल सर्जरी, every laparotomy, there is always that risk of इंट्राएब्डोमिनल एडिशंस, ठीक है। तो ये सिर्फ इसके लिए कोई रेयर चीज़ नहीं है, हर एब्डोमिनल सर्जरी में ऐसे ही है। हिस्टेरेक्टमी फिर होती है अगर किसी को दोबारा कंसीव नहीं करना, तो दे कैन जस्ट गेट दैट डन। इसके दो तरीके थे, यू कैन डू इट विजाइनली, ठीक है, लैप्रोस्कोपिकली, और ओपन सर्जरी हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द यूट्रस। विजाइनली जो है वो बहुत ज़्यादा हाई स्किल्ड पर्सन को करनी है, बट इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, ये एंड पे एक टेबल है, हम देखेंगे, और इससे ऑब्वियसली इट गारंटीज ट्रीटमेंट और ऑल ऑफ दैट। फिर रेडियोलॉजिकली हम क्या कर सकते हैं, हम यूट्राइन आर्टरी एम्बलाइजेशन कर सकते हैं, ये एक मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक है, और ये फर्टिलिटी स्पेयरिंग होती है यूजुअली, ठीक है। लेकिन ये है कि फर्दर ये लॉन्ग टर्म जो है इसका हल नहीं है, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म जो है यू विल हैव टू प्रॉब्ली गो फॉर हिस्टेरेक्टमी इवेंचुअली। उसके अलावा दूसरी टेक्निक्स भी हैं, बट they're not that effective as well, तो just you don't need to look at them, like uterine artery embolization को मेनली आप याद रखें, ठीक है। तो अच्छा, there are 2 or 3 things that I want to discuss with you guys. एक MCQ था, somebody had sent it to me and it was really interesting, so I'll just read it out to you guys and then I want you guys to tell me like what you guys think is the answer, ठीक है। just give me a minute, मैं वो MCQ निकाल लूँ। ओके, ठीक है। अच्छा, अब गौर से सुने, ठीक है। 39-year-old, para 3, presents with heavy menstrual bleeding. She has a cycle of 30/7. BMI है 32. Her HB is 10 gram %. What is the treatment of choice?
तो I'm just gonna where is the text box right here. ठीक है, her age is 39. ठीक है, she is para 3. BMI है 32. HP is 10. ठीक है, she presents with heavy menstrual bleeding. उसका cycle is regular. It's 30/7, which is normal. तो उसके अंदर what is the treatment you will give her? Treatment of choice क्या है? अच्छा, options हमारे पास क्या हैं? Number 1, we have tranexamic acid and mefenamic acid. ठीक है, tranexamic acid is basically an anti-fibrinolytic, and this one mefenamic acid is anti prostaglandin. ठीक है, mefenamic acid in fact is pondstone, जो हम normal कहते हैं ना pondstone. हाँ, ये वो है. ठीक है, दूसरी ऑप्शन हमारे पास है combined oral contraceptives. तीसरी ऑप्शन हमारे पास है hysterectomy. चौथी ऑप्शन हमारे पास है GnRH एनालॉग. फिर हमारे पास है डानाजोल. पांचवी ऑप्शन. तो चैट में आप मुझे बताएं व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, एंड आल्सो विल डिस्कस why that is the answer. All right. ठीक है, मुझे सिर्फ 2 लोगों ने आंसर भेजा. आई नीड लाइक मोर पीपल टू टेक पार्ट इन दिस. इट्स ओके अगर आप गलत भी हैं, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करेंगे, मैं आपको एक्सपोज नहीं करूंगी. ऑल राइट. सो 3 लोगों ने आंसर दिए, 4 लोगों ने दे दिए, शुक्र है. All right. So a lot of people have said the first option, and some people have said the second option. तो I'm glad आप लोगों ने एटलीस्ट इन तीनों को तो हिस्टेरेक्टमी और इन तीनों को तो रूल आउट कर लिया है. ठीक है. अच्छा, तो हमारे पास 2 मेन कंटेंडर्स हैं अब, ये पहले वाला और ये दूसरा वाला. ठीक है, अब हमने क्या देखना है. Okay, we won't give combined oral contraceptives, says Ramesh. Her cycle is fine. Yeah, her cycle is regular, which is all right. Her HB is 10. Is that a good thing or not? That's not a good thing, right? अच्छा, ये है heavy menstrual bleeding है. हमने एज को एक तो देखना है. Yeah, she's anemic. ठीक है, एज हमने देखना है 39. तो क्या इसकी combined oral contraceptive से कोई contraindication है? What was the criteria for the age? If she's more than 35, if she's more than 35, yeah, लेकिन सिर्फ more than 35 is sufficient, या उसके अलावा उसके साथ कुछ होना चाहिए जो उसको Smoking. yeah, ठीक है, that's what I was trying to get out of you guys. More than 35 plus smoking है, और ये बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो सिर्फ more than 35 देख के वो उसको contraindication में डाल देते हैं. वो more than 35 है और smoking. Her BMI is more. BMI की कट ऑफ वैल्यू क्या थी? more तो है सही. Does anybody remember the BMI's cut off value? 35 or more, है ना? 35 or more मतलब वो BMI की कट ऑफ वैल्यू में नहीं आ रही है. Wait, let me open that table.
फिर मैं आपको वो पेज बताती हूँ कि कौन सा था। वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स वाला चैप्टर है ना, उसमें मैंने आपको बताया था वो हमने कॉन्ट्राइंडिकेशंस वाला टेबल करना है कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं फॉर गिविंग कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, where is that table? That table is on page 72. ठीक है, और इसमें हमारे पास जो मेन क्राइटेरिया है उसके हिसाब से उसकी एज मोर देन 35 होनी चाहिए एंड शी मस्ट बी स्मोकिंग। तो शी इज़ नॉट स्मोकिंग एट दिस पॉइंट, और इसमें बीएमआई का खास मेंशन नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो बीएमआई इज नॉट अ फैक्टर जिस पे हम कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को सोचते हैं। ठीक है, लेकिन यूजुअली क्या है, कट ऑफ जो है 35 एंड मोर होती है फॉर मोस्ट थिंग्स। जैसे हमने जितना भी पढ़ा अब तक बीएमआई की कट ऑफ वैल्यूज में, वो 35 एंड मोर होती है। तो फिर इजीली आप अगर आपको एग्जाम में नहीं याद आ रहा कि वाज बीएमआई अ फैक्टर और नॉट, तो 35 की आप जो है रेंज वो 35 एंड मोर की याद कर लें। ठीक है, अच्छा, एच बी इज 10, तो शी इज एनीमिक, तो डेफिनेटली जो है इसको ऐसी कोई ट्रीटमेंट देनी है विच विल प्रिवेंट दैट सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में सबसे पहली आती है मायरीना की। अब एल एन जी आई यू एस, अब एल एन जी आई यू एस तो यहाँ है नहीं। ठीक है, फिर अगली आती है हमारे पास कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। और हम क्यों इस तरह कह रहे हैं, बिकॉज उसकी एज 39 है, शी ऑलरेडी हैज 3 चिल्ड्रन। ठीक है, तो शी डजंट रियली नीड टू टेल अस कि शी इज नॉट विशिंग टू कंसीव। if someone is almost 40 years old and she has 3 kids, it's safe to say that uski family complete hai and she does not wish to conceive any longer. ठीक है, तो इस केस में वी विल लुक एट दिस। डेफिनेटली ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, इससे 50% ब्लड लॉस जो है वो कम हो जाता है काफ़ी हद तक। आई थिंक द वैल्यू वाज 50%, मतलब कंप्लीट ब्लड लॉस कम नहीं होता, बट देर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन। तो ये उस केस में जब उनकी हम फर्टिलिटी मेंटेन करना चाह रहे होंगे, व्हेन वी वांट के if this female, if her age was for example 24, and even if she was para 3, but if she was 24 or if she was 28, then you could reconsider. But she is 39, so you will go for, obviously you can assume that she does not wish to conceive. ठीक है, तो ये इस तरह के ये जो टफ एमसीक्यूज हैं बहुत आते हैं, तो आपने बहुत सोच समझ के इसका आंसर लगाना होता है। ठीक है ना, डेफिनेटली ये अच्छी ट्रीटमेंट है, इससे काफी फर्क भी पड़ जाता है, लेकिन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ पुटिंग हर थ्रू इवन सम चांस कि उसकी ब्लीडिंग नहीं इंप्रूव होगी। दिस इज लाइक अ फुल प्रूफ मेथड, बिकॉज आप वॉइस इश्यूज, अब आवाज ठीक है? कैन यू गाइस हियर मी नाउ? ऑलराइट, okay, perfect. So this is one MCQ we did and this was just to relax a little bit, क्योंकि अब हम next topic करने लगे हैं adenomyosis. Oops, clear all my drawings. Adenomyosis is relatively simple. ठीक है, मैं already told you कि endometrial gland जब है myometrium के अंदर penetrate कर जाते हैं तो उसको हम adenomyosis कहते हैं, और ये अक्सर तभी डायग्नोज होता है आफ्टर लाइक hysterectomy is done और आप स्पेसिमेन को एग्जामिन करो पैथोलॉजिकली, तो फिर आपको पता चलता है। ठीक है, yes, the answer is combined oral contraceptives. अगर अगर इस एमसीक्यू के रिगार्डिंग कोई और डिस्कशन भी है तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, जब हम नेक्स्ट छोटी सी ब्रेक लेंगे तो हम उसमें डिस्कस इसको फर्दर कर लेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस। ऑलराइट, एग्जामिनेशन पे पता चलता है, तो यू कैन सी के यूजुअली इट इज़ एसिम्प्टोमेटिक। ठीक है, और अगेन ये एंडोमेट्रियल टिश्यू है, तो इट विल बी सब्जेक्ट टू हार्मोनल चेंजेस, स्पेशली एस्ट्रोजन। तो ये साइक्लिकल जो है वो कराएगा हमारे पास, इट कुड कॉज साइक्लिकल ब्लीडिंग। ठीक है, तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, एंड स्पेशली इसका सिग्निफिकेंट फीचर है डिस्मेनोरिया कॉज करता है, इट कॉजेज सिवियर पेन थ्रू आउट योर मेंसेस, और यूट्राइन एनलार्जमेंट भी हो सकती है अगर ये बहुत ज़्यादा जो है पेनिट्रेट करके ग्रो कर जाए ये टिश्यू, जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है जो हमारे पास मायोमेट्रियम में जा रहा था। ठीक है, ये मल्टीपैरस वुमेन में होता है एंड दे आर यूजुअली डायग्नोज्ड इन द लेट 30s या अर्ली 40s में। इसमें ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है, जो रिवील बल्कि समटाइम्स टेंडर बॉगी यूट्रस। लिटरली ये डिटो इसी तरह के वर्ड्स यूज हो जाते हैं क्वेश्चन में, लिखा होगा फीमेल पेशेंट ऑन एग्जामिनेशन शी हैज अ बल्की एंड टेंडर बॉगी यूट्रस। तो अगर आपको बस ये
बल्कि और टेंडर बॉगी आए तो आप दो चीज़ें मेन सोच सकते हो, ठीक है। एक तो आपने एडेनोमायोसिस सोच लेना है, और ये उसकी ऑब्वियसली एज पे डिपेंड करता है, 30s एंड 40s में है। उसके अलावा जो फीमेल्स जिनके अंदर रिटेन पार्ट्स ऑफ कंसेप्शन भी होते हैं, तो उनके अंदर भी ऐसे वो टेंडर बॉगी यूट्रस वाली बात कर देते हैं, ठीक है, दैट शी हैड अ मिसकैरेज लाइक वट एवर, या फिर उसकी वो मे बी शी इज 2 weeks postpartum, तो शी प्रेजेंट्स टू यू एंड शी हैज टेंडर बॉगी यूट्रस, तो फिर आप रिटेन पार्ट्स ऑफ कंसेप्शन भी सोच सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो, ठीक है। तो आप ये मेन दो चीज़ें सोच लें। फिर अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन के ऊपर भी डायग्नोसिस हो जाता है, तो उसके अंदर आपको हेमरेज, फेल्ड डिस्टेंडेड एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स नजर आ जाएंगे, कभी कभार कोई इरेगुलर नोडुलर डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, इसकी जो क्या कहते हैं, अच्छा हाँ, मैंने ये बताना था, MRI इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अच्छा, ये पहली चीज़ मैं पढ़ रही हूँ गायनी में, जिसका मुझे एज फार एज आई कैन रिमेंबर दैट MRI इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर दिस, ठीक है। हालांकि एक्सपेंसिव भी होता है और अक्सर वैसे कराते नहीं है, लेकिन MRI इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर दिस एडेनोमायोसिस। और इसकी जो ट्रीटमेंट है, ये कोई ख़ास अच्छी नहीं है। इसमें सिर्फ आप क्या कोशिश करते हो कि एमेनोरिया जो है वो इंड्यूस कर दिया जाए, ठीक है, ताकि जो पेन और एक्सेसिव ब्लीडिंग है वो रिलीव कर दी जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, स्पेशली द प्रोजेस्टिन कंटेनिंग वंस। तो प्रोजेस्टिन कंटेनिंग वंस हमारे पास कौन से थे, उसमें माइलिना भी आ जाता है, उससे डीपो प्रोवेरा भी आ जाता है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म हम GnRH एगनिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट टू रिड्यूस द सिग्निफिकेंट सिम्टम्स, और उसके बाद फिर हम उनको दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे ला सकते हैं। और जैसे ही ट्रीटमेंट स्टॉप होगी तो वापस मसला शुरू हो जाएगा, बिकॉज रिमेंबर हम सिर्फ उस मसले को सप्रेस कर रहे थे, हम उसको रिमूव नहीं कर रहे थे। और डिफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, हिस्टेरेक्टमी, ठीक है, डिफिनेटिव ट्रीटमेंट है हिस्टेरेक्टमी। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस वाज MRI, treatment was inducing amenorrhea. How do we do this? By giving progestin containing contraception. इसमें हमारे पास आते हैं माइलिना और डेपो प्रोवेरा आ जाता है। शॉर्ट टर्म हम GnRH एगनिस्ट भी यूज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इसकी डिफिनेटिव क्या है, हिस्टेरेक्टमी। ये मेन पॉइंट्स थे इसमें से आपने जो देखने थे। उसके अलावा टेंडर बॉगी यूट्रस, ठीक है, और ये 30s to 40s एज में और मल्टी पैरस वुमन होगी, इस तरह आपके पास प्रेजेंटेशन होगी इसकी। तो दिस वाज फॉर एडेनोमायोसिस, ठीक है। अब हम इन्फेक्शंस की तरफ चले जाते हैं। आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट टुडे, मतलब मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं आराम आराम से पढ़ाऊँ। वन पेज नंबर 122 पे है, या पेज नंबर 122, लेट्स गेट देयर। ऑलराइट, टेबल 9.1 पे आ जाते हैं। अच्छा, अब now what is the issue here is that ये जो सारे infections हैं, either there are non-sexually transmitted or they're sexually transmitted infections। तो ये दो मेन हमने differentiations जो हैं वो देखनी है। तो obviously एक अच्छा हिस्ट्री और एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा इट कुड बी दैट समवन हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड और अब्यूज्ड, तो उस केस में भी आपने प्रॉपर तरीके से उसको हैंडल करना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस क्या पूछते हैं कि पेशेंट अटेंड क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और उनके जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं, उनके जो सिम्टम्स हैं वो आपको अच्छे से डिस्क्राइब करें। तो वी कैन I would have liked to do this like an interactive thing, lekin I'm not sure. Can anyone like volunteer to ask me these questions in Urdu, and then I will pretend like a patient and reply? अगर किसी का दिल चाह रहा है, वरना हम इसको रीड दे सकते हैं। Can I select someone to do it? I don't know अगर आप लोग सुनेंगे मेरी बात। Hey, yeah, Pumbal, why don't you like try to ask me these questions in Urdu? Yeah, sure, I will. आप किस मसले से आई हैं? मुझे ना दर्द होती है।
और कोई इलामात हैं आपको? Okay, you have to at this point ask me कि किधर दर्द होती है. That's a very vague answer, but that's literally what patients say. हाँ, सिम्टम्स एक्सप्लोर करने हैं ना, तो हाँ ठीक है, दर्द कब कब होती है, कहाँ होती है? Yeah, ठीक है. हर वक्त होती रहती है? या ओके, मुझे दर्द होती है नीचे, और हर वक्त होती रहती है. मतलब जब मैं कुछ सुबह लेती हैं उठती हूँ दर्द और को खत्म चाय करने? पीती हूँ तो फिर मुझे दर्द शुरू हो जाती है. सुबह क्या? मैं जब मैं सुबह उठती हूँ ना और मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद मुझे दर्द शुरू हो जाती है, और मैं इसके लिए कोई दवाई नहीं लेती. और ये ये मसला आपको कब से है? 3 महीने हो गए हैं. इसके साथ कोई और मसला भी है आपको या सिर्फ दर्द है? अ, मुझे खारिश भी होती है बहुत ज्यादा. अच्छा, कोई पानी वगैरह तो नहीं पड़ता आपको? ये मेरी हिस्ट्री ले रहे हैं आमना, मैं पेशेंट हूँ. ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इट्स क्योंकि सो ये मच. सारी जो ट्रैक की जेनिटल ट्रैक की इन्फेक्शंस है उसके अंदर डिस्चार्ज भी तो है ना, और उसके फिर आगे जो स्मेल्स वगैरह हैं और ये वो। या ओके. पानी कल पानी नहीं पड़ता. ठीक है। आप आगे नहीं पहले पूछ किसी सकते? डॉक्टर को दिखाया है इसके लिए? नहीं, कहाँ, हम कहाँ डॉक्टर के पास जाते हैं. आपको शुगर की, ब्लड प्रेशर, टीबी की आपकी फैमिली में या आपको कभी हुआ पहले? नहीं, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क बाय द वे. नहीं. माहवारी आपकी टाइम पे आती है? कितने दिन के बाद होती है? कहाँ देखा, बस हर महीने हो जाती है. सो इट मीन्स इट्स रेगुलर। और ना, शुरू में हमने पूछा ही नहीं कि इज शी मैरिड और नॉट। आपकी शादी हुई हुई है? हाँ जी, 3 बाल भी हैं. आखिरी बच्चे की पैदाइश कब हुई थी? कोई हो गए होंगे 4-5 साल. ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर्स जो है उसकी वजह से भी एसटीआई से प्रीडिस्पोज हो जाती है ना विमेन। या तो वो भी इतनी देर से हुई है और डिस्चार्ज भी नहीं बता रही कोई। हम्म हाउ डू वी आस्क अबाउट सेक्सुअल पार्टनर्स? आप बस शादी का पूछ लें, ठीक है, और उसके बाद आप, बिकॉज वो ऑब्वियसली इफ शी हैज अ सेक्सुअल पार्टनर अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, दैट शी विल प्रोबेबली नेवर एवर टेल यू. स्पेशली हमारी सेटिंग में आई हाईली डाउट इट. तो जस्ट ट्राई टू इन्वेस्टिगेट द सिम्टम्स एज मच एज यू कैन. ठीक है. और you can ask her when was the उनसे ये last time पूछ that सकते she हैं। had sexual intercourse. हाँ, उनसे ये पूछ सकते हैं कि आपने लास्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स कब किया था, और ये पूछ सकते हैं कि आपके हस्बैंड आपसे आपके साथ रहते हैं। Yeah, तो उससे भी मतलब थोड़ा आइडिया हो जाता है, because क्योंकि कुछ most, लोग होते हैं yeah, so go ahead. उनके मतलब पार्टनर्स उनके साथ नहीं होते, और फिर वो भी आगे हो सकता है ना। Hmm, exactly. ठीक है, तो you can ask, and और usually वो gynae ward में आई होती है, they're already expecting you to ask something like that. तो as soon as you say something like आप अपने शौहर के साथ पहले मतलब कब, anything, just vaguely just say something, और उनको समझ आ जाती है. ठीक है, if they want to share. Okay, go ahead, yeah. और उसके बाद इफ शी इज यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कोई गोलियां वगैरह खाती हैं बच्चे रोकने के लिए, या कोई और तरीका इस्तेमाल करती हैं आप? उसको वक्फा कहते हैं. ठीक है, वक्फे के लिए गोलियां, यहाँ पहले खाती थी, अब नहीं. और शी इज ईटिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बट नो कॉन्डम्स, सो शी इज प्रीडिस्पोज्ड टू Yeah, she's predisposed to what? Sexually transmitted infections. एसटीडीज। एस्मेटिडिजिटीज। As absolutely. ठीक है ना, perfect. Okay. उसके बाद एचपीवी वैक्सीनेशन और एक्सपेंसिव और बहुत कम लोग कराते हैं। कोई काला यार कान वगैरह कभी हुआ हो? नहीं. All right. uh
आई थिंक दैट्स उन काला कान भी आप वो भी पूछ लेंगे पहले आपने कोई सर्विकल टेस्टिंग को क्या कहते थे they call it something specifically because वो swab डलता है ना तो there is something related to that swab that they take the sample from but I forgot what it's called अगर किसी को याद आ रहा है कि उर्दू में उसको क्या कहते थे खैर ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है ठीक है तो स्टार्ट विद अगर एग्जाम में आपके पास इस तरह का कोई स्टेशन आए स्टार्ट विद सेइंग अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम सो ऑन सो फोर्थ फिर आपने आपको इंट्रोड्यूस करते हैं फिर आप पेशेंट से कहते हैं हाँ जी आप किस मसले से आई हैं ठीक है आपके डू यू स्मोक और टेक अल्कोहल या तो आप स्मोकिंग और अल्कोहल की हिस्ट्री भी ले सकते हैं ठीक है बट दैट कम्स वे लेटर क्योंकि अगर आपका स्टेशन ऐसे कोई कितने एक मिनट होते हैं 2 मिनट होते हैं 5 मिनट होते हैं मुझे तो अब याद भी नहीं है छोटा सा स्टेशन होता है उसमें तो आधा तो इंट्रोडक्शन में गुजर जाता है और बाकी में आप सिम्टम्स पूछते पूछते जो है घूमते रहते हैं ठीक है तो आपने सिम्टम्स में मेन उससे इचिंग रेडनेस स्वेलिंग और डिस्चार्ज की हिस्ट्री पूछनी है अगर डिस्चार्ज है तो कितना किस रंग का ये सब पूछना है और क्या पहले भी उसी तरह का डिस्चार्ज आता था इट्स वेरी पॉसिबल कि उसका डिस्चार्ज नॉर्मल हो ठीक है हमारे पास ड्यूरिंग द फर्टाइल पीरियड जो है डिस्चार्ज वो वाटरी आता है और ड्यूरिंग जो आफ्टर द फर्टाइल पीरियड है वो डिस्चार्ज जो है वो रॉ एग वाइट की कंसिस्टेंसी का आता है तो शी कुड बी मिस्टेकिंग दैट एज वेल फॉर समथिंग पैथोलॉजिकल ठीक है फिर आप उसके उनके सेक्सुअल एक्सपोजर का इतना ज़्यादा वैसे आई हैवंट सीन पीपल यूज दिस बस आप वो पूछ सकते हैं कि वक्फे के लिए क्या यूज़ करते हैं और कब लास्ट आपको कब जो है आपने उनकी गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री लेनी है माहवारी लास्ट कब हुई थी साइकिल कितने दिनों का है देन यू कैन आस्क जस्ट रफली कि कितने पैड्स यूज करती हैं कितनी ब्लीडिंग होती है वो सब ठीक है तो उसके बाद आपने फिर पैप स्मीयर और हेपेटाइटिस वगैरह की हिस्ट्री ले लेनी है तो दिस इज द मेन थिंग्स दैट यू हैव टू कवर फॉर STIs अच्छा अब ये नेक्स्ट टेबल है हमारे पास टेबल 9.2 इसमें सारे जो हमने STIs करने हैं बहुत अच्छे से कवर हुए हैं लाइक लिटरली अगर आप इस टेबल को अच्छे से रट्टा लगा लेंगे ना तो आपको आ जाएगा और मैं इस टेबल को ना आपको फिल करवा देती हूँ टेबल के जो इस वाले पोर्शन में आप इसकी ना ट्रीटमेंट्स लिख लें जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है ओके हाउ टू टेक हिस्ट्री ऑफ अब्यूज अच्छा अब्यूज की हिस्ट्री के पता क्या है कि या फिर आपका पेशेंट प्रेजेंट करेगा इन द स्टेट ऑफ मतलब they have just been abused so in that case what do you say it's pretty obvious that they have been abused ठीक है लेकिन फिर आपने उनसे पूछना है कि you know उसकी प्रोटोकॉल ही अलग है इनफैक्ट दैट काइंड ऑफ अब्यूज अगर आपने फिगर आउट करना है इज शी गेटिंग अब्यूज्ड बाय हर पार्टनर इन अ वे दैट यू कांट immediately tell ठीक है और हमारे सेटिंग में marital rape is very common और all these other types of issues are very common तो इस केस में एक तो आप जो है जब आपकी इनकी हिस्ट्री वगैरह ले रहे होंगे तो आप उनसे अब्यूज का इस तरह पूछ सकते हैं कि आपके शौहर जो हैं आप पे हाथ तो नहीं उठाते यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स नॉट लाइक सेक्सुअल अब्यूज स्टार्ट फ्रॉम अदर एक्ट्स ऑफ वायलेंस देन स्लोली go towards that sexual abuse issue ठीक है बिकॉज मोस्ट केसेस में वो आपको नहीं बताती लाइक दे जस्ट टू स्केर्ड तो स्टार्ट विद आपके शौहर आप पे हाथ तो नहीं उठाते फिर कभी आपके शौहर ने आपके साथ ज़बरदस्ती करने की तो नहीं कोशिश की बट ये कब आपने क्वेश्चन पूछना जब आपने ये सारे दूसरे क्वेश्चन पूछ लिए और वो आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना लग गई है ठीक है फिर वो आपको अगर अगर उसने बताना वो बता देगी और यूजली वो नहीं बताएगी शी विल लाइक नहीं नहीं बस या एट द एंड आपने वो पूछना है क्वेश्चन ठीक है एंड यूजली दे लाइक नहीं नहीं मर्द तो हमारे बहुत अच्छे हैं कभी हाथ नहीं उठाया ये वो फिर आप उनका जब एग्जामिनेशन करते हो तो पता नहीं किधर से ब्रूजेस आए होते हैं ठीक है देन बिलो द एज जो यंग हैं फीमेल्स उनके साथ क्या होता है दे गेट इनटू अ रिलेशनशिप और उनका जो पार्टनर होता है वो अब्यूजिव होता है बट बिकॉज दे नॉट मैरिड तो वो ये बात किसी से नहीं शेयर कर सकती और हमारी सेटिंग में भी अगर आप वार्ड कभी गए हो तो यू सीन कि हम हिस्ट्री कैसे लेते हैं बहुत गंदे तरीके से एंड दैट्स बिकॉज सारे पेशेंट्स एक ही वार्ड में होते हैं और हम वहीं हिस्ट्री ले रहे होते हैं एंड इफ somebody has gone through abuse I don't think she wants to announce it to the 10 other patients who are also laying there ठीक है तो उस केस में you have to find her in isolation if she is a younger patient who is not married and you're suspecting that maybe she has been abused so it's probably with like the partner that she's in a relationship with तो आपने पहले उनके साथ ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना है ये सारी चीज़ें उससे पूछ लेनी है एंड
जब उसकी when she's a little bit isolated, तो आप उनसे आहिस्ता आवाज में आप पूछ सकते हैं कि मतलब आप वैसे भी अगर कोई रिलेशनशिप में रियली हाईली डाउट कि आप उनसे पूछेंगे कि आप किसी को पसंद तो नहीं करती, किसी के साथ मतलब आप रहती तो नहीं है इस तरह, दे वोंट टेल यू, लेकिन मे बी दे विल, तो गॉड नोज अबाउट दैट। मैंने एक ही केस देखा हुआ है ऑफ अब्यूज, लेकिन दे ऑब्वियसली डिडंट लेट अस गो नियर हर, तो हमने हिस्ट्री तो बहुत दूर की बात है, हमने सिर्फ उनकी जैसे उनके बारे में सुना था, ठीक है, बिकॉज वो इंस्टेंटली उनको एक आइसोलेटेड रूम में डाल देते हैं फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड लॉट ऑफ ट्रॉमा, तो दे डोंट लेट students just go up and ask questions and all of that. Yeah, this is a sensitive topic, it needs a whole other area. तो ये हमें उन्होंने फोरेंसिक में पढ़ाया था इन अ रियली बैड वे, आई रिमेम्बर। तो लेकिन जब ऑब्वियसली गायनेकोलॉजी वार्ड में दिस इज एन इशू दैट वी नीड टू डू। इंशाल्लाह हाउस जॉब में अगर कोई ले रहा है तो उसकी अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी रिगार्डिंग दिस इशू, ठीक है। तो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। Tests for STIs and related conditions in women. First we have bacterial vaginosis, ठीक है, ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ इन्फेक्शन है। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो नॉर्मल लैक्टोबैसिलाई थे हमारे हेल्दी वजाइनल फ्लोरा के अंदर, वो जो हैं डिप्लीट हो जाते हैं, मतलब हमारी जो नॉर्मल फ्लोरा है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है, उसमें जो लैक्टोबैसिलाई थे वो डिप्लीट हो जाते हैं, और जो वजाइनल पीएच है उसकी एलिवेशन हो जाती है ना। इस केस में जो है दूसरे बैक्टीरिया को एक चांस मिलता है टू आइदर ओवरग्रो, या फिर दूसरे ऐसे बैक्टीरिया जो नॉर्मल वहाँ की फ्लोरा नहीं है वो आके वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके वेजाइनल एपिथेलियल बायोफिल्म में देयर इज गार्डनरेला वेजिनालिस, ठीक है, दूसरी स्पीशीज भी हैं बट दिस इज वन स्पेसिफिक वन दैट कॉजेज दैट फिशी ओडर। हमने जब पढ़ा था पैथोलॉजी उसमें माइक्रो में कि फिशी मैल ओडर ये कॉज करता है, ऑफेंसिव वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स क्या थे बैक्टीरियल वेजिनोसिस के? डूशिंग, ठीक है, द पीपल हु वॉश देयर वेजाइना विद सोप और टू मच वाटर, तो उसके साथ ये इशू होता है। फिर एथनिसिटी ब्लैक, एंड देन स्मोकिंग हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट, एंड न्यू सेक्सुअल पार्टनर अगर हो, या रिसीविंग ओरल सेक्स, ठीक है। तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर दिस। फिर ऑफेंसिव वेजाइनल डिस्चार्ज हो जाता है, and it is reported to as having fishy malodor, और एग्जामिनेशन पे इसका होमोजेनस ऑफ वाइट वैजिनल डिस्चार्ज होगा, ठीक है। रिमेंबर दिस होमोजेनस पार्ट, ऑफ वाइट वैजिनल डिस्चार्ज है, होमोजेनस, फिशी मैलोडर है, और जब इसका हम स्वॉब लेते हैं और उसको ग्राम स्टेन कर देते हैं हम, तो इसके ऊपर एक हम यूज करते हैं एम्सिल्स क्राइटेरिया, ठीक है, एंड इसके अंदर 3 out of 4 आर रिक्वायर्ड। बाय द वे मैं टेक्स्ट से रीड कर रही हूँ अभी। 3 out of 4 आर रिक्वायर्ड। 4 क्राइटेरिया क्या है? डिस्चार्ज को होमोजेनस हो, पीएच हाई हो, क्लू सेल्स मिले माइक्रोस्कोपी पे, और फिशी ओडर हो अगर 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाली है। 4 क्या थे? होमोजेनस डिस्चार्ज, पीएच इज हाई, क्लू सेल्स और माइक्रोस्कोपी, एंड फिशी ओडर, ठीक है। तो ये 4 चीजें हमारे पास होनी चाहिए, और इसमें से अगर 3 हो तो फिर हम उसको बैक्टीरियल वेजिनोसिस इजीली जो है वो लेबल कर देते हैं, ठीक है। तो just remember the name of AMSEL's criteria if you can't remember the 4 parameters. इसमें है हमारे पास बैक्टीरियल वेजिनोसिस की एसोसिएशंस, ठीक है, इसमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के साथ भी एसोसिएटेड होता है। फिर पोस्ट हिस्टेरेक्टमी वैजिनल कफ सेल्यूलाइटिस, एंड प्रेगनेंसी में भी हो सकता है जिसकी वजह से प्री टर्म बर्थ हो सकती है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स में जो है ये वो हो सकता है, क्या कहते हैं, इम्प्लीकेशन और एक मिसकैरेज में, ठीक है। तो these are all conditions हम पहले भी डिस्कस सकते हैं, we just said infections before, but bacterial vaginosis को भी याद रखें। इसकी ट्रीटमेंट जो है ये आप टेबल के ना बिल्कुल 9.2 के जैसे ये राइट साइड पे लिख दें, ताकि जब आपने रिवाइज करना हो तो सिर्फ आप ये पढ़ें, ये वाला बिट और ये ट्रीटमेंट। यहाँ पे ट्रीटमेंट है इसकी ओरल या इंट्रावेजाइनल मेट्रोनिडाजोल या क्लिंडामाइसिन, ठीक है, ओरल या इंट्रावेजाइनल मेट्रोनिडाजोल या क्लिंडामाइसिन, ठीक है। तो I'll just give you some time to write it down. ठीक है। एंड इनको एडवाइस क्या आपने देनी है? एडवाइस है कि आप अवॉइड करें, डूशिंग अवॉइड करें, या एक्सेसिव जेनिटल वॉशिंग को आप अवॉइड करें, ठीक है।
So the pH returns back to normal after you take all these precautions. All right. अब हम next आते हैं candidiasis. Vulvovaginal candidiasis is actually very very common. एंड इसमें क्या है, वल्वल एंड वेजाइनल इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, इसमें इंटेंस इचिंग, इंटेंस इरिटेशन, और इसका डिस्चार्ज जो है वो वाइट कर्डी वेजाइनल डिस्चार्ज होता है. ठीक है, कर्ड इज लाइक दही को कहते हैं, तो उस तरह का डिस्चार्ज हो जाता है. ठीक है, स्टिकी एंड ऑल ऑफ दैट. फिर एग्जामिनेशन पे आपको क्या मिलेगा, inflammation milegi, there will be severe, like they will not severe but, well, I have seen severe swelling के signs. ठीक है, एरिथमा, edema, फिर फिशरिंग भी हो सकती है. अगर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा देर के लिए चल रही है तो there can be fissuring of the vulva and the vagina, which is obviously going to be very painful for her, and there will be discharge. ठीक है, symptoms जो हैं वो most frequent persistent कब है, when the woman is diabetic. So I remember, I think Pumbal asked me that question कि आपको diabetes तो नहीं है, which is a really good question, because फिर आप सोच सकते हैं कि maybe she has candidiasis. Diabetic, immunocompromised patient, ठीक है, तो maybe she has HIV, maybe she has other conditions. फिर pregnancy में भी हो जाता है. ठीक है, तो आपने क्या लेना, आपने फिर बैक्टीरियल स्वैब लिया, उसको माइक्रोस्कोपी और कल्चर आपने करवाई, उसके ऊपर आपको क्या नजर आएगा, ग्राम पॉजिटिव स्पोर्स होंगे और लॉन्ग सूडो हाइफे होंगे. ठीक है, ग्राम पॉजिटिव स्पोर्स एंड लॉन्ग सूडो हाइफे आपको नजर आएंगे. एंड इसकी ट्रीटमेंट आपके पास क्या है, वैसे तो इसकी बहुत सारी ट्रीटमेंट की मोडालिटीज़ हैं, लेकिन कॉमनली हम क्या यूज़ करते हैं, इंट्रावेजाइनल पेसरी दे सकते हैं. और इंट्रावेजाइनल पेसरी हम उनको देते हैं जो सेक्सुअली ऑलरेडी सेक्सुअली एक्टिव हैं. ठीक है, इंट्रावेजाइनल चीज़ें जो जिन्होंने कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्ट नहीं लिया उनको हम नहीं देते. ठीक है, फिर ओरल इमिडाजोल्स देते हैं, दे आर इफेक्टिव. आई नो ऑफ अ ट्रीटमेंट, हम लोग देते हैं फ्लूकोनाजोल, ये वन टाइम ओनली डोज है, मुझे इसकी वो मिलीग्राम्स भूल गए. फ्लूकोनाजोल दे देते हैं, वन टाइम ओनली डोज है, एंड विद इन अ वीक जो है द कंडीशन शुड इम्प्रूव. ठीक है, फिर टॉपिकल भी हमारे पास एजेंट्स हैं, एंटी फंगल्स, और हम एक्वस क्रीम्स दे सकते हैं एज एन एमोलिएंट एंड क्लेंजिंग एजेंट, और ये सिम्टोमेटिक रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करते हैं. और बिकॉज ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं है, तो जो पार्टनर्स को सिम्टम्स नहीं है उनको ट्रीट करने की जरूरत नहीं है. सेम विद बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ऑब्वियसली इट वाज नॉट एन एसटीआई, अगेन कैंडिडियासिस इज नॉट एन एसटीआई. ठीक है, so if it's not an STI, so this can also happen in females who are not sexually active. ठीक है, and our age group right now is actually highly implicated in this as well. ठीक है, so if even if one of us has this issue, we can easily rule out other issues. ठीक है, टॉपिकल वल्वल एंटीफंगल्स, एक्वस क्रीम्स होगी. ठीक है, तो अब आप टेबल को फिल इन कर लें. टेबल में आप लिख लें टॉपिकल इंट्रावेजाइनल पेसरीज, or oral imidazoles, or topical vulval antifungals. ठीक है, and then just write plus emollients for relief. Okay, ठीक है. Let's go to the next one. We have trichomoniasis. ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस भी हमने माइक्रो में अच्छे तरीके से पढ़ा था तब. ये प्रोटोजोआ कॉज करता है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस. ठीक है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, लाइक वैजिनल डिस्चार्ज होता है, उसकी काफ़ी वेरिएबल अपीयरेंस वगैरह होती है. अक्सर वैसे 50% फीमेल्स में ये एसिम्टोमेटिक होता है. ठीक है, ये जो है ये है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड. अब हमने दो पढ़ लिए, बैक्टीरियल वेजिनोसिस एंड कैंडिडियासिस, व्हिच वाज नॉट एन एसटीआई, एंड दिस वन हैज नाउ बिकम ट्राइकोमोनियासिस. और इसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे वो एसटीआई है सारे. ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, और इसमें जो है आपने करंट एंड रीसेंट सेक्सुअल पार्टनर की ट्रीटमेंट साथ में करनी है. सारे एसटीआईज के साथ ऐसा ही है. ठीक है, एसोसिएशन इसकी किस चीज़ के साथ है, अगेन प्री टर्म बर्थ के साथ, लो बर्थ वेट, मैटरनल पोस्टपार्टम सेप्सिस एंड ऑल ऑफ दैट. अच्छा, इसमें टेस्टिंग में गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट. इसको आप सर्कल कर लें, और ये टेबल में भी है. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट.
ये इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है. Then some nucleic acid amplification tests can also simultaneously detect gonorrhea and chlamydia from the same sample. ठीक है, तो आप उसकी ये भी टेस्ट करवा सकते हैं. अगेन इसकी जो ट्रीटमेंट है ये है सिस्टेमिक मेट्रोनिडाजोल. ठीक है, तो इसके साथ आप लिख लें ट्रीटमेंट इज सिस्टेमिक मेट्रोनिडाजोल. अच्छा, जब आप इसको स्लाइड के अंदर देखेंगे तो आप इसका क्या लेते हैं, वेट माउंट लेते हैं. ये पिक्चर फिगर 9.1 पेज 124 के ऊपर है. इसका आप वेट माउंट लेते हैं तो इसके ऊपर आपको कोन शेप्ड फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिजम्स नजर आते हैं. ठीक है, टर्मिनल स्पाइक होती है 4 फ्लैजेला. अब मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ इस बिकॉज अगर वो इस तरह का एमसीक्यू दे दें जैसे फीमेल गेम. अच्छा, मेट्रोनिडोजोल एमसीक्यू है पास पेपर का. थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो दैट. ट्राइकोमोनास वाजिनालिस के लिए ट्रीटमेंट है मेट्रोनिडोजोल. ठीक है, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ अगर सिनेरियो आ जाए कि शी हैड सम सॉर्ट ऑफ उसको वल्वल वेजाइनल स्वाब लिया ब्ला ब्ला ब्ला, उसके ऊपर हमें फ्लैजेलेटेड ऑर्गेनिज्म नजर आए, या उसको हम हमें उसके ऊपर सूडो हाइफे नजर आए, या फिर हमें उसके ऊपर जो है क्या हो सकते हैं हमारे पास, दे कुड बी वाइजिनोसिस में क्या नजर आता है, बेसिकली लैक्टोबैसिलस कम होता है, क्लू सेल नजर आ जाता है. तो अगर आपको क्लू सेल नजर आए तो थिंक ऑफ बैक्टीरियल वाइजिनोसिस. तो ये सब छोटे छोटे क्या कहते हैं नगेट्स जैसे कह लें वो हैं, जस्ट टू रिमेंबर. नेक्स्ट इज गोनोरिया. ठीक है, सर्विसाइटिस एंड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज. तो वी हैव गोनोरिया एंड क्लेमिडिया. अक्सर इनकी इन्फेक्शन जो है वो साथ साथ होती है. ठीक है, और इनका ये मसला है, ये ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं कि काफ़ी देर तक ये एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, और जब ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कर लेते हैं ना फिर आपको पता चलता है कि क्या हुआ है मेरे साथ. ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम विद दीज डिजीजेस. तो इसमें क्या होता है, आपका ऑल्टर्ड, मोस्ट केसेस एसिम्प्टोमेटिक अबाउट 50%. फिर आपका ऑल्टर्ड वेजाइनल डिस्चार्ज हो जाता है, लोअर एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है. गोनोरिया में रेक्टल इन्फेक्शन हो सकता है थ्रू द ट्रांसम्यूकोजल स्प्रेड एंड रिसेप्टिव एनल सेक्स, एंड फ्रिंजियल इन्फेक्शन हो सकता है थ्रू रिसेप्टिव ओरल सेक्स. ठीक है, तो एग्जामिनेशन इज ऑफन नॉर्मल. देयर कुड बी सर्विसाइटिस विद और विदाउट सम डिस्चार्ज. अब इसमें जो है असेंडिंग इन्फेक्शन में रिजल्ट इन पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एंड समटाइम्स हेमाटोजेनस स्प्रेड कैन आल्सो हैपन. तो उसकी वजह से हमारे पास पर्परिक नॉन ब्लैंचिंग रैश आ जाएगी, और रिएक्टिव आर्थराइटिस हो जाता है इसमें जो मोनो आर्टिकुलर होता है. ठीक है, वेट बेरिंग जॉइंट पे. फिर ऑप्थेल्मिक इन्फेक्शन भी हो सकती है इससे. अब टेस्टिंग क्या है इसकी, हम अगेन न्यूक्लिक एम्प्लीफिकेशन, ये न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट करते हैं, और और क्लेमिडिया के साथ हम टेस्टिंग कर लेते हैं क्योंकि इसकी डुअल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है. और इसकी ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, पारेंट्रल थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन देते हैं प्लस एजिथ्रोमाइसिन. तो पारेंट्रल मतलब वी कैन से आईवी सेफलोस्पोरिन प्लस एजिथ्रोमाइसिन, आईवी थर्ड जेन सेफलोस्पोरिन प्लस एजिथ्रोमाइसिन. ठीक है, ये भी लिख लें आप अपने टेबल में जस्ट टू कंप्लीट इट यहाँ पे. Then we have chlamydia. It is the most common bacterial sexually transmitted infection in women under the age of 25 years. ठीक है, और ये यूजली सब क्लिनिकल पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जब कॉज करता है फिर हमें पता चलता है कि आफ्टर दैट जब फाइब्रोसिस अच्छी खासी हो जाती है और सब फर्टिलिटी होती है, देन लेटर यू रियलाइज कि ये तो ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं एंड इट्स प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ क्लेमिडिया और समथिंग. ठीक है, तो इसमें क्या है, रिस्क फैक्टर्स हमारे पास क्या थे, न्यू सेक्सुअल पार्टनर हैं, या ऑल्टर्ड वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, इंटरमेंस्ट्रुअल या पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन. अगेन एग्जामिनेशन यूजुअली नॉर्मल, लेकिन सर्विसाइटिस हो सकता है. फिर इसके अंदर सेम चीज़ हो सकती है, कभी कभार ये जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाके रिएक्टिव आर्थराइटिस वगैरह करवा देता है. ठीक है, इसकी भी टेस्ट हम यूज़ करते हैं, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट. अगेन हम इसको गोनोरिया के साथ चेक करते हैं, और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन. ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन इसकी ट्रीटमेंट है. अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये जो क्लेमिडिया गोनोरिया इन दोनों की जो ट्रीटमेंट है, हम जब भी हमें इस तरह का कोई सस्पिशन होता है कि इट्स आइदर और, तो हम दोनों की ट्रीटमेंट साथ ही शुरू कर देते हैं. ठीक है, तो दोनों के अंदर जो मेडिकेशन हम साथ देना शुरू कर देते हैं. तो क्लेमिडिया की थी
हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन, गोनोरिया की थी, हमें आईवी थर्ड जेन सेफलोस्पोरिन देनी थी प्लस एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो ये जो है इन दोनों की ट्रीटमेंट भी हो गई। देन द नेक्स्ट पेज 126 पे हम चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी वी शुड नो अबाउट इट प्रॉपर्ली, क्योंकि ये जो है सब फर्टिलिटी की बहुत बड़ी रीजन है। ऑलराइट, तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में एसेंडिंग इन्फेक्शन की वजह से होता है। क्लेमिडिया में मोस्ट प्रोबेबली और लेस फ्रीक्वेंटली गोनोरिया में होता है। उसके अलावा माइकोप्लाज्मा जेनिटालियम, इसका बस नेम याद रखें। डायग्नोसिस इसका क्लिनिकली हम करते हैं। इसमें क्या होता है, लोअर बायलैटरल एब्डोमिनल पेन होता है, डिस्पैरनिया, ऑल्टर्ड वेजाइनल डिस्चार्ज एंड इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग, ठीक है। इसमें क्या था, लोअर बायलैटरल एब्डोमिनल पेन, डिस्पैरनिया, ऑल्टर्ड वेजाइनल डिस्चार्ज, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड एंड पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग, ठीक है। सिस्टेमिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं, इन्फेक्शन, फीवर वगैरह। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हमें स्लोअर एब्डोमिनल एंड सर्विकल मोशन टेंडरनेस एंड सर्विसाइटिस मिलेगा, ठीक है। हमने सब STIs के लिए टेस्ट करना है और हमने प्रेगनेंसी को भी एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। इट कुड बी हर एब्डोमिनल पेन इज बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट, तो ऑब्वियसली जब भी कोई फीमेल आपके पास कोई भी एब्डोमिनल पेन के साथ आती है, आप उसका प्रेगनेंसी टेस्ट तो कर ही देते हो ना, ठीक है। जब भी ये PID सस्पेक्टेड हो तो आप ट्रीटमेंट शुरू कर दें, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट में क्या है, हमारे पास IV थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन है, ठीक है। इसमें यूजुअली 2 वीक्स की ट्रीटमेंट होती है। इसमें IV थर्ड जेन सेफलोस्पोरिन आते हैं। फिर हम लोग मैक्रोलाइड्स या टेट्रासाइक्लिन प्लस मेट्रोनिडाजोल देते हैं, ठीक है। और ये 2 वीक्स के लिए देते हैं और पार्टनर की भी ट्रीटमेंट करते हैं एजिथ्रोमाइसिन के साथ। तो व्हाट वाज इट, वी हैड ये ट्रीटमेंट बाय द वे ये नीचे लिखी हुई है, इन केस एनीवनस कंफ्यूज्ड, ये ट्रीटमेंट रेजीम यहाँ पे, ठीक है। मैक्रोलाइड या टेट्रासाइक्लिन प्लस मेट्रोनिडाजोल विद ए IV थर्ड जेन सेफलोस्पोरिन, ठीक है। और सेक्सुअल पार्टनर्स को हमने स्क्रीनिंग वगैरह करनी है और एजिथ्रोमाइसिन देना है। अच्छा, ये इसकी ट्रीटमेंट हमने फ़ौरन ही शुरू कर दी, ठीक है। इसके सिक्वेले क्या हैं, मतलब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं कि एंडोमेट्रियल एंड फैलोपियन ट्यूब जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है और डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से सब फर्टिलिटी हो जाती है। ऑलरेडी मेंशन दिस, सब फर्टिलिटी। फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस बहुत बढ़ जाता है, हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी ये पढ़ा था, ठीक है। फिर क्रॉनिक पेल्विक पेन भी होती रहती है। अगर राइट अपर क्वाड्रेंट पेन भी आपको मिल रहा है तो इट कुड बी ड्यू टू पेरी हेपेटाइटिस, और ये बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन इज कॉल्ड फिट्स-ह्यू-कर्टिस सिंड्रोम। और ये गोनोरिया में भी बहुत गोनोरिया की वजह से बेसिकली होता है, फिट्स-ह्यू-कर्टिस सिंड्रोम। और इसके अंदर हमारे पास आते हैं पेरी हेपेटिक एडिशंस होते हैं, जिसको हम वायलेंट स्ट्रिंग अपीयरेंस कहते हैं, कि वायलेंट स्ट्रिंग अपीयरेंस जो है इन एडिशंस की है, ठीक है। तो ये कुछ कोड्स जैसे हैं, आपने याद रखने कि if a violent string appearance is mentioned or something like that, तो आप उसको properly answer कर सकें, ठीक है। फिर लैप्रोस्कोपी में वही वायलेंट स्ट्रिंग अपीयरेंस हो सकती है अगर फिट्स-ह्यू-कर्टिस है, लेकिन बिकॉज दिस इज सच अ रेयर कंडीशन, तो नॉर्मली क्या है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में आपको स्कारिंग और एडिशन वगैरह मिलेगी, स्ट्रक्चर्स इन द पेल्विस, और हाइड्रोसेल्पिंजीज भी हो सकता है ऑफ द ट्यूब्स। तो ये अगले पेज के ऊपर जो है हमारे पास ये दिखाया हुआ है, ठीक है। फिर अगर IUD डली हुई है, हमने IUD वाले चैप्टर में भी ये पढ़ा था, अगर IUD डली हुई है और इन्फेक्शन हो गया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गया, तो हम उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, और उसको ट्रीट करेंगे। साथ में हम उसको किसी और जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पे शुरू कर देंगे, ठीक है। तो दिस वाज इट फॉर द इन्फेक्शंस फॉर दिस पार्ट ऑफ द सेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने जो करना है, लेट्स जस्ट टेक अ नाइस हेल्दी ब्रेक फॉर लाइक 15 मिनट्स। उसके बाद हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस करेंगे एंड विल डू यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स, ठीक है ना। ठीक है जी, आ रही है। ऑलराइट, अच्छा, पहले हम देखते हैं कि हमारे पास 2 मेन चीज़ें हैं जो हमने आज डिफ्रेंशिएट करना है, और उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होगी और उस हिसाब से हमने उसको डील करना है, ठीक है। एक तो ये है कि हमारे पास आएगी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। और ये है बेसिकली
इसमें क्या क्या हमारे पास फीचर्स होते हैं, हमारे पास है कि जब भी कोई प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है इनवॉलंटरी लीकेज ऑन एफर्ट, एक्सर्शन, स्नीजिंग या कफिंग, तो जो है देयर विल बी सम यूरिन दैट हैज एस्केप्ड, ठीक है, तो दिस इज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। एंड देन वी हैव अनदर वन, इट्स कॉल्ड ओवर एक्टिव ब्लैडर, ठीक है। ओवर एक्टिव ब्लैडर हमारे पास उसके अंदर 3 सिम्टम्स आते हैं मेन, एक है फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी एंड अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, बस बेसिकली जो डिट्रूजर मसल होता है ना हमारा, उसकी ओवर एक्टिविटी हो जाती है और वो जो है ना वो कंट्रैक्ट होता है बिला वजह, मतलब बगैर किसी वजह के, मतलब इट्स नॉट सपोज टू बी कंट्रैक्टिंग एट दैट टाइम, लेकिन वो होता है। तो उससे हमारा क्या इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी, मतलब ज्यादा दफा अवॉइड करता, मतलब अभी ब्लैडर फुल भी नहीं हुआ था तो वो उसको अर्ज करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो ज्यादा दफा जो है वो अवॉइड करने की जरूरत पड़ेगी, तो उसको ज्यादा दफा अवॉइड करना पड़ेगा। फिर अर्जेंसी है सडन कंपेलिंग डिजायर टू पास यूरिन, ठीक है। और ये मैंने ऑलरेडी बताया कि आपके पास यूरिन आई, चाहे वो कितनी भी भरी हुई है, लेकिन एकदम जब डिट्रूजर मसल जो है वो कंट्रैक्ट कर जाएगा तो फिर आपको अर्जेंसी आना शुरू हो जाएगी। फिर अर्ज इनकॉन्टिनेंस, तो अर्जेंसी हुई एंड देयर वाज सम इनवॉलंटरी लीकेज, ठीक है, तो इसको कहते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। इसमें हमारा डिट्रूजर मसल जो है वो ज्यादा जो है ओवर एक्टिव हुआ होता है। उसके अलावा हमारे पास है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, इसमें डिट्रूजर मसल का एज सच कोई मसला नहीं होता, इसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। कोई एनाटॉमिकल मसला हो गया, जैसे जो हमारा जो पेरिनियम है वो हमारे ये सपोर्ट करता है ब्लैडर को और वेजाइना को और रेक्टम को, ठीक है। तो अगर वहाँ कोई मसल वीकनेस होगी है तो उसकी वजह से हमारे पास जो है कि यूरिथ्रा की पोजीशन थोड़ी आगे पीछे चेंज हो जाएगी, तो उसकी वजह से स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी। तो हम आगे इसके कुछ छोटे छोटे वो रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं एंड उसकी कॉजेज समझ लें, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर्स है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ये जो मैंने आपको बताया था ना कि ये प्रेशर डालने की वजह से जो हो सकता है, एक्सर्शन हुई, कफ किया, स्नीज किया, कोई भारी चीज उठा ली, उसकी वजह से स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। मल्टीपैरिटी, ठीक है, विजाइनल बर्ड्स जिसकी मल्टीपल हुई हो तो वहां पे ऑब्वियसली उस एरिया की मसल वीकनेस हो जाती है। देन फोर्सेप्स डिलीवरी, फिर कोई पेरिनियल ट्रॉमा हो, लॉन्ग लेबर हो, प्रोलॉन्ग लेबर इज एक्चुअली प्रीटी बिग रिस्क फैक्टर फॉर दिस। देन एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दिया होगा, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया से अगेन आपको पता है प्रोलॉन्ग हो जाता है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। बर्थ वेट मोर देन 4 kg, बेबी ही इतना बिग था। इंक्रीजिंग एज, पोस्ट मेनोपॉज, ओबेसिटी हो सकती है, कोई कनेक्टिव टिश्यू डिजीज हो, क्रॉनिक कफ हो किसी को, बार बार वहाँ एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो प्रेशर कॉज कर रहे हो। एंड देन डॉक्साजोसिन, ये जो है इट इज़ गिवन फॉर हाइपरटेंशन और ये रिलैक्स करती है यूरिथ्रल स्फिंक्टर को। तो इन सब चीज़ों से जो है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, ठीक है। आई वांट यू गाइस टू स्पेशली रिमेंबर मल्टीपैरिटी एंड प्रोलॉन्ग लेबर एंड उसके अलावा ये मुझे बर्थ वेट ज़्यादा हो, ठीक है, एंड पोस्ट मेनोपॉजल, जो इंक्रीजिंग एज और पोस्ट मेनोपॉजल, आप इसको साथ याद रखें, ठीक है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स फॉर स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अब हमारे पास है डिट्रूजर मसल की ओवर एक्टिविटी, इसमें हमारे पास भी कुछ चीज़ें, चाइल्डहुड बेड वेटिंग की अगर हिस्ट्री मिले तो ये एक रिस्क फैक्टर है। फिर ओबीस हो पेशेंट, स्मोकिंग की अगर हिस्ट्री हो, कोई प्रीवियस हिस्टेरेक्टमी हुई हो या प्रीवियस कॉन्टिनेंस सर्जरी, एक्सक्यूज मी, ऑलराइट, सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। हमने डिफ्यूजर ओवर एक्टिविटी के रिस्क फैक्टर्स देख लिए, चाइल्डहुड बेड वेटिंग, ओबेसिटी, फिर स्मोकिंग, प्रीवियस कोई हिस्टेरेक्टमी हुई हो और प्रीवियस कॉन्टिनेंस सर्जरी, ठीक है। तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर दैट।
अच्छा, इन्होंने जो है अब मैकेनिज्म बहुत अच्छा यहाँ बनाया हुआ है, बट आई थिंक इसको थोड़ा सा हम देख लेते ताकि ज़रा याद रहने में आसानी हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे पास, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर होगा ड्यूरिंग कफ, लाफिंग, स्नीजिंग, तो इसके ऊपर ब्लैडर के ऊपर हमारे पास प्रेशर पड़ेगा। जो ब्लैडर नेक है वो सपोर्ट होती है अबव द पेल्विक फ्लोर एंड इन द एब्डोमेन। ठीक है, तो अगर इसकी सपोर्ट जो है फॉर एनी रीज़न वो ख़राब हो जाती है तो देयर विल बी लॉस ऑफ सपोर्ट और ये फिर लीकेज होना यहाँ से शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास ए एंड बी में ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस दिखाया हुआ है। और सी के अंदर क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी, अंदर से ही जो डिट्रूजर मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वो इंक्रीज प्रेशर कर रहा है। ठीक है, उसकी वजह से वही फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, अर्ज इनकॉन्टिनेंस शुरू हो जाएगी एंड देयर विल बी यूरिनरी लीकेज। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, और ये मैं इसलिए बता रही हूँ इस बिकॉज हल्का सा इसका जो है मैनेजमेंट का डिफरेंस आता है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप सिर्फ ये फ्लो चार्ट कर लेंगे ना, आपके मैक्सिमम जो हैं क्वेश्चंस आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द साइंस एंड सिम्टम्स दैट द वुमन हैज। अच्छा, अब इसमें क्या है, यूरिनरी सिम्टम्स के साथ आइए, आपने उनका प्रॉपर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन लिया है, आपने सब उससे क्वेश्चंस पूछ लिए। ठीक है, वॉइडिंग के और दूसरे सारे क्वेश्चंस, फिर उसके स्टोरेज के। ठीक है, फिर यूरिनालिसिस आपने किया, यूरिनालिसिस वही आप इन्फेक्शंस वगैरह सब रूल आउट कर देंगे। ठीक है, फिर अगर अदर इन्वेस्टिगेशन में आपके पास क्या है, आप रीनल ट्रैक्ट का स्कैन कर सकते हैं, सिस्टोस्कोपी करते हैं, स्पेशली जब कि कोई रेड फ्लैग्स में क्या है कि हीमाचूरिया आ रहा है। ठीक है, तो इफ देयर इज ब्लड इन द यूरिन और इफ उनकी एज इज मोर देन 60 या कोई इस तरह का रिस्क फैक्टर उनके अंदर है तो आप जो है सिस्टोस्कोपी की तरफ जाते हो। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, अगर उसके अलावा आप जो है ब्लैडर डायरी भी रखवा सकते हैं, पैड टेस्ट। अच्छा, ब्लैडर डायरी की ना इसके ऊपर बहुत अच्छी पिक्चर यहाँ बनी हुई है पेज 139 के ऊपर। आप उस पेशेंट से कहते हैं कि आप ना फॉर 3 days अप्रॉक्सीमेटली आप वैसे ये आप ये रिकॉर्ड करें अपनी ब्लैडर डायरी और आप चेक करें कि कब कब जो है आपने कितनी ड्रिंक्स ली, आपका वॉल्यूम ऑफ यूरिन अप्रॉक्सीमेटली कितना पास हुआ, और एवरी टाइम यू लीक आपने सर्कल करना है। ये मैं यहाँ स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। हाँ, एवरी टाइम यू लीक आपने सर्कल करना है कि आप ड्राई थे, डैम्प, वेट, सोक्ड, एंड ईच टाइम यू पास वाटर सर्कल हाउ सिवियर द अर्जेंसी वाज। ठीक है, तो इस तरह आपने टाइम के मुताबिक जो है आपने सब कुछ करते जाना है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इज इट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और इज इट बिकॉज ऑफ डिट्रूजर ओवर एक्टिविटी। ठीक है, आपको अंदाजा हो जाएगा इसकी कॉज क्या है। टेबल इज important, no, you just have to know it's called a bladder diary, that's it। ठीक है, देन वी हैव द पैड टेस्ट। इसमें क्या है, जो फीमेल है वो 24 आवर्स के लिए जो है वो पैड पहनेगी और उसने जो है स्पेसिफिक उस पहनने से पहले उस पैड का हम वेट कर लेते हैं। ठीक है, उसको हमने वे कर लिया, उसको हमने उसका चेक कर लिया क्या उसका वो था वेट। ओवर एक्सप्लेनेशन। एंड देन वो उसको 24 आवर्स के लिए पहनेगी और वो जान के जो है ना प्रोवोकेशन टेस्ट करेगी, मतलब वो जान के जो है क्लाइम करेगी स्टेयर्स या वो कफिंग करेगी और अपनी नॉर्मल भी डेली एक्टिविटी साथ में करती रहेगी। देन आफ्टर 24 आवर्स जो है हम उसका चेंज इन वेट जो है मेजर करेंगे विच विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ यूरिन लॉस्ट। ठीक है, और ये जो है लेकिन ये लेस कॉमन है ये टेस्ट, पैड टेस्ट। ब्लैडर डायरी हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, यूजुअली क्या है कि हमने हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन पे अक्सर ही रूल आउट हो जाता है कि इज इट ओवर एक्टिव ब्लैडर या इज इट स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, फिर अब हम इसकी मैनेजमेंट देख लेते हैं। जब हमें पता चल गया एग्जैक्टली क्या मसला है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में हमने क्या देना है, हमने तो पहले उसको देनी है सबसे पहले हमेशा शुरू होती है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है, हमने फ्लूइड बैलेंस के बारे में उसको बताना है। ठीक है, कि हाँ, आपने 1.5 to 2.5 लीटर पर डे देना है। ये पर्पल बॉक्स है, इसके ऊपर आपने ये कुछ डिटेल्स फिल इन कर लें, मैंने टेक्स्ट से पढ़ के लिखी हुई है कि एडवाइस अबाउट फ्लूइड बैलेंस क्या देनी है कि 1.5 to 2.5 लीटर पर डे उन्होंने पानी लेना है। मतलब जैसे ये 1.5 लीटर की बॉटल है, इसको फिल कर लें और इसी बॉटल से आपने पीना है। ठीक है, रिड्यूस करें अपनी कैफीन इनटेक, उसके साथ ऐड कर दें प्लस रिड्यूस द ड्रिंक्स विच कंटेन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ठीक है, कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स, ऐसे स्वीटेंड ड्रिंक्स जो होती हैं उनको आपने रिड्यूस करना है।
फिर ब्लैडर रीट्रेनिंग कर सकते हैं एंड pelvic floor muscle exercises. ठीक है, pelvic floor muscle exercises is a really important point और ये मैंने अक्सर MCQs में भी देखा है. तो मैं आपको जो है urinary incontinence, ये हमारी मैम की वो है स्लाइड, तो इसमें जो है this is the word Kegel exercises. So I'll just show you a picture of what roughly Kegel exercises look like. For some reason my Google is very slow. आपको क्रोम नजर आ रहा है या सिर्फ PDF? नहीं नजर आ रहा क्रोम. Okay, let me share it again. I think अब नजर आ रहा है. अब नजर आ रहा है? हाँ नजर आ रहा है. ठीक है, so there are some specific exercises. ये सबसे पॉपुलर वाली है. तो you can do this for the treatment of incontinence. ठीक है, चाहे bladder overactivity की वजह से है, चाहे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, तो उस दोनों के लिए कर सकते हैं. लेकिन ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए ज़्यादा रिकमेंडेड है बिकॉज वी नो कि पेल्विक फ्लोर की वीकनेस होती है जिसकी वजह से स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो रहा है. ठीक है, तो दिस इज हाउ दे आर नोन एज केगल एक्सरसाइजेस. ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू शो यू गाइस. लेट्स गेट बैक टू दिस. ठीक है, फिर ब्लैडर रीट्रेनिंग में भी ये है कि ये ओवर एक्टिव ब्लैडर वालों में ज़्यादा यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे मैंने कहा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में हम ये वाली एक्सरसाइजेस. एक सेकंड, मुझे चैट नहीं नज़र आ रहा है, लेट मी चेक. यस, ठीक है, तो ब्लैडर रीट्रेनिंग इज बेसिकली यू हैव टू stop urine while urinating, hold pee and release. ये ब्लैडर रीट्रेनिंग में क्या करते हैं, हम पेशेंट को अवेयर कर देते हैं. ठीक है, हम उसको बता देते हैं कि जो ब्लैडर की फिलिंग है ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है. ठीक है, तो आपको फील होगा कि फिलिंग है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अभी आपने वॉइड करना है. तो आप जो है एग्जैक्टली आप सुबह को उठ के पहले आप पहले दिन करेंगे कोशिश कि मैं 5-10 मिनट वॉइडिंग को डिले कर दूँ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्ट फ्रॉम 5 मिनट्स एवरी मॉर्निंग. आप जैसे पहली सुबह मैंने 5 मिनट वेट किया बिफोर वॉइडिंग, हालांकि मुझे रिफ्लेक्स आ रहा था. फिर आप नेक्स्ट डे मैंने कोशिश की कि मैं उसको टाइम को इंक्रीज कर दूं, 10 मिनट्स कर दूं. फिर नेक्स्ट डे मैं उसको टाइम को और इंक्रीज कर दूं. ठीक है, इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन है वो कम हो जाती है बिकॉज आप उसको एक कॉन्शियस तरीके से जो है आप उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो. ठीक है, तो इसमें उसके अलावा आप उसको वेट लॉस की भी एडवाइस देते हो. प्लीज मेक इट इजी. सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड. ओके, आई विल रिपीट दिस. ठीक है, मे बी मैंने कोई कंफ्यूजिंग बात बता दी है. एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, लेट्स लुक एट दिस फ्लो चार्ट अगेन ताकि हमें याद रहे किसका क्या मैनेजमेंट है. स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की वी हैव पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग और ये मैंने आपको एक्सरसाइजेस दिखा दी थी. फिर हमारे पास है ब्लैडर ट्रेनिंग. ठीक है, इसमें 2-3 चीजें आती हैं. पहले आपने पेशेंट को एजुकेट करना है अबाउट. एक मिनट. ऑल राइट, ब्लैडर ट्रेनिंग में सबसे पहले आपने क्या करना है, यू कैन जस्ट राइट हियर. फर्स्ट यू विल एजुकेट. ठीक है, एजुकेट हर अबाउट व्हाट. आप उनको बताएंगे कि जो आपको जैसे ही अर्ज होती है इट डजंट मीन यू हैव टू गो एंड वॉइड. ठीक है, आपकी जो फिलिंग है नॉर्मल ब्लैडर की कैपेसिटी वो है 350 to 500 ml. ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली आपको उससे पहले फील हो रहा है कि आपका ब्लैडर फिल हो गया. ठीक है, तो आपने क्या करना है, फिर एजुकेशन के बाद आपने करना है एक्शन. एक्शन में आपने क्या करना है, एवरी मॉर्निंग आपने 5 या 10 मिनट्स यू हैव टू ट्राई टू होल्ड द यूरिन. आपको अर्ज फील हुई बट आप 5 मिनट वेट करेंगे पहले दिन. फिर दूसरे दिन आप 10 मिनट वेट करेंगे. तीसरे दिन आप 15 मिनट वेट करेंगे. मतलब अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स
resilience and compliance. फिर eventually गोल क्या है आपने कि 1 घंटे तक eventually वेट करना है, एंड व्हाट हैपेंस इज आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दिन में वो कम हो जाएगी. मतलब पहले आप मे बी यू आर गोइंग टू द टॉयलेट लाइक 12 टाइम्स, लेकिन अब आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करके यू मेड इट 8 to 9 टाइम्स. फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम होगी और वो नॉर्मल लेवल पे आ गई. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू ट्रेन योर ब्लैडर. और फिर आप उनको वेट लॉस की एडवाइस भी देंगे. ठीक है, तो ये हम 6 वीक्स के लिए ब्लैडर ट्रेनिंग करते हैं. ठीक है, ये ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए करते हैं, वही जिसमें डिट्रूजर मसल की ओवर एक्टिविटी थी. और जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में उसमें हम प्रेफर करते हैं पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस टू मेक दोज मसल स्ट्रॉन्गर. ठीक है, जिनकी वीकनेस हुई हुई थी. अच्छा, अब इसमें अगर इससे भी काम नहीं चल रहा, अभी तक हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे ही थे, हमने कोई मेडिकेशन नहीं दी, हमने कोई सर्जरी नहीं की. ठीक है, हमने अब इसका अपनी काम कर रहा है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में, तो हमने यूरोडायनामिक टेस्टिंग की तरफ जाना है. ठीक है, और नोट करें कि ओवर एक्टिव ब्लैडर के केस में पहले हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स देने की कोशिश करते हैं टू ट्राई टू रिलैक्स दैट डिट्रूजर मसल. ठीक है, पहले हम ड्रग्स इनफैक्ट देख लेते हैं. ड्रग्स थे हमारे पास जो रेकमेंड, यहाँ आप फिल इन कर लें इसको. जो हमारे पास रिकमेंडेड ड्रग है वो है ऑक्सीब्यूटिनिन. ठीक है, उसके अलावा भी दूसरे हैं, बट जो फर्स्ट लाइन ये रिकमेंडेड है वो है ऑक्सीब्यूटिनिन. ये पेज 144 पे लिखा हुआ है पर्पल बॉक्स में. तो जस्ट रिमेंबर ऑक्सीब्यूटिनिन इज प्रीटी सफिशिएंट. ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं यूरोडायनामिक टेस्टिंग में. अब हमने जो है फर्दर उस कॉज को उसकी टेस्टिंग करके उसको एवेल्युएट करना है फॉर सर्जरी. तो आई शो यू दिस. तो हमने क्या करना है, हमने एक कैथीटर ब्लैडर के अंदर डाल दिया. ठीक है, और एक कैथीटर जो है ये इन्होंने लिखा हुआ है कि एब्डोमिनल प्रेशर चेक करने के लिए बेसिकली हम रेक्टम में डालते हैं इसको. ठीक है, एक कैथीटर ब्लैडर में डाल दिया, एक कैथीटर रेक्टम में डाल दिया. ठीक है, फिर ब्लैडर को हम वार्म सलाइन से फिल करते रहेंगे और प्रेशर की रिकॉर्डिंग्स देखते रहेंगे. ठीक है, वार्म सलाइन से फिल करते गए और प्रेशर की रिकॉर्डिंग देखते गए. और हम डिट्रूजर का प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, ब्लैडर प्रेशर माइनस एब्डोमिनल प्रेशर. ठीक है, एब्डोमिनल प्रेशर वो है जो बाहर से आ रहा है, और ब्लैडर प्रेशर वो है कि जो उसके अंदर डेवलप हो रहा है. तो डिट्रूजर का नेट प्रेशर क्या होगा कि हमने पहले एब्डोमिनल प्रेशर को माइनस करना होगा, क्योंकि इट्स नॉट पार्ट ऑफ द इंट्रिंसिक ब्लैडर प्रेशर, वो तो बाहर वाला है ना. तो हमने ब्लैडर प्रेशर माइनस एब्डोमिनल प्रेशर से हमने डिट्रूजर प्रेशर निकाल लेना है. ठीक है, तो जब वो पेशेंट जो है उसको फिलिंग सेंसेशन आ गई है, वो 150 ml पे आएगी. फिलिंग सेंसेशन 150 ml पे आएगी और स्ट्रॉन्ग डिजायर टू वॉइड आएगी 350 ml पे. ये आप यहाँ पे ना लिख लें ताकि जब रिवाइज करना हो तो आप बस यहीं से पढ़ लें. क्या था, फिलिंग सेंसेशन 150 ml पे आ जाती है, डिजायर टू वॉइड 350 ml पे आ जाती है, एंड अर्जेंसी जो है वो 500 ml पे आ जाती है. ठीक है, ये आर्बिट्रेरी वैल्यूज हैं, हर किसी का ब्लैडर ऑब्वियसली डिफरेंट होता है, बट ये जनरल कुछ चीज़ें याद रख लें. अच्छा, फिर जब अर्जेंसी पेशेंट बताएगा ना, तो आप फिलिंग ऑब्वियसली वार्म सलाइन जो फिल कर रहे थे उसको आप रोक लेंगे, और आप पेशेंट से कहेंगे कि आप वो करें, प्रोवोकेटिव एक्शंस करें. मतलब आपने क्या करना है, कफ करना है, जंपिंग कर लेनी है, या कोई ऐसी चीज़ करनी है जिससे आपकी पहले इनकॉन्टिनेंस होती थी. ठीक है, तो उसको फिर वो टेस्ट कर लेंगे. कैथीटर अभी तक अंदर नहीं है बाय द वे. फिर उसके वो प्रेशर चेंजेस को टेस्ट कर लेंगे कि क्या इशू हो रहा है. फिर फाइनली द पेशेंट इज आस्क्ड टू वॉइड. अच्छा, इसमें पहले क्या था, हमने प्रेशर कैथीटर डाल दिए थे ब्लैडर में एंड रेक्टम में. ठीक है, फिर हमने वार्म सलाइन फिल इन की पेशेंट के ब्लैडर में और हमने प्रेशर चेंजेस देखते गए. अच्छा, हमने डिट्रूजर का प्रेशर कैसे चेक किया, ब्लैडर प्रेशर माइनस एब्डोमिनल प्रेशर. हमने फिलिंग सेंसेशन अराउंड 150 ml पेशेंट को आ जानी चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू वॉइड अराउंड 350 ml आ जानी चाहिए, और अर्जेंसी 500 ml पे आ जानी चाहिए. जब पेशेंट को अर्जेंसी फील हो तो आपने पेशेंट से कहना है कि आप जंपिंग करें, रनिंग करें, या जिस भी चीज़ से उनको वॉइड मतलब होती थी पहले इनकॉन्टिनेंस, वो करें ताकि प्रेशर उस टाइम पे नोट किया जा सके. ठीक है, अच्छा, अब इस तरह के हमारे पास ये ग्राफ आएंगे. तो ये जो पहले वाला है
I want you guys to tell me कि इसमें क्या issue है, stress incontinence है क्या? Okay, try not to look at your book, just look at the screen. ठीक है, urinary leak. अच्छा, patient जो है कफ करने पे उसका bladder ये pressure increase हुआ, rectal pressure increase हुआ, फिर detrusor pressure जो है वो subtract करके ये सीधी line जा रही है. तो which issue is this? इट्स नॉट डिट्रूजर ओवर एक्टिविटी क्योंकि उसका प्रेशर जो है ना वो स्ट्रेट है. Yeah. So this is the इट stress incontinence. इट कोड Stress स्ट्रेस and इनकॉन्टिनेंस. एग्जैक्टली ठीक है ना. तो यू गाइस पिक दैट अप. अगर ये डिफ्यूजर प्रेशर की सीधी लाइन ना भी होती और ये ब्लैडर प्रेशर रेक्टल प्रेशर बिल्कुल सेम जा रहे हैं तो फिर यू कैन इमेजिन कि आप खुद ही ब्रेन में सोच लें कि सब्ट्रैक्ट करके तो ये तो लाइन होगी नहीं. ठीक है, जब ये बिल्कुल सेम जा रहे हैं. अब ये नेक्स्ट वाला आप देख लें. इसमें ब्लैडर प्रेशर जो है वो इस तरह फ्लक्चुएट कर रहा है और रेक्टल प्रेशर सीधा जा रहा है और डिट्रूजर प्रेशर भी सेम लाइन फ्लक्चुएट कर रही है. नाउ दिस इज प्रीटी ऑब्वियस इसका क्या आंसर बनेगा. दिस इज डिट्रूजर ओवर एक्टिविटी. ठीक है, तो ये बस आप इसको बेसिक इसका फॉर्मूला याद कर लें. डिट्रूजर प्रेशर इक्वल्स ब्लैडर प्रेशर माइनस एब्डोमिनल प्रेशर. ठीक है, तो ये अब हम वापस आ जाते हैं इस मैनेजमेंट के फ्लो चार्ट पे. ठीक है, तो हमने उनकी कर ली है यूरोडायनेमिक टेस्टिंग. यूरोडायनेमिक टेस्टिंग से हमें पक्का पता चल गया एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या. फिर उसके बाद हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे. सर्जिकल ट्रीटमेंट के सिर्फ आपने एक्सक्यूज मी नेम्स करने हैं. ठीक है, ये जो टीवीटी है इट इज टेंशन फ्री वजाइनल टेप. ठीक है, ये बेसिकली मिड यूरिथ्रल टेप्स होती हैं. ये जो पेरिनियल मसल्स जहाँ वीकनेस होती है वहाँ पे ना एक टेप अटैच कर देते हैं. तो जस्ट रिमेंबर द नेम. देन यू कैन ऑल्सो डू कॉल्पो सस्पेंशन. ठीक है, इसमें फेनेंस्टाइन इंसिजन देते हैं और आप जो है ना सूचर्स लगा देते हैं basically at the paravaginal fascia. But you don't need to remember this procedure, just remember the names. Colpo suspension कर सकते हैं या tension free vaginal tapes use कर सकते हैं. ठीक है, और इसमें जो है हमारे सेटिंग में आई थिंक कॉल्पो सस्पेंशन जो है ज़्यादा कॉमनली होती है, लेकिन अब जो है वेरियस एरियाज में टेप का यूज़ हो रहा है शुरू ज़्यादा. ठीक है, फिर अब अगर ओवर एक्टिव ब्लैडर है तो उसके जो हैं भी ट्रीटमेंट आप सिर्फ उसके नेम्स कर लें या फिर आप जो है बोtulinum टॉक्सिन दे सकते हैं. ठीक है, तो उससे जो है ऑब्वियसली आपको पता है बोtulinum टॉक्सिन जो है वो उस पर एक्ट करता है. उस पर क्या कहते हैं, इट्स एन इरिवर्सिबल मस्करिनिक एंटागनिस्ट और समथिंग. बेसिकली ये न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज नहीं होने देता, तो ये वहाँ से उसकी रिलैक्स कर देता है. तो डिट्रूजर मसल जो ओवर एक्टिव हुआ है तो ज़्यादा कंट्रैक्ट हुआ था उसको हम रिलैक्स कर देंगे. ठीक है, देन फिर आप सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन भी कर सकते हैं. ठीक है, इसकी कोई डिटेल खास नहीं थी, बस इसका नाम लिखा हुआ था सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन. तो you can just either put Botox in the detrusor muscle or you can use sacral neuromodulation. इसके सिर्फ नाम करने हैं. ठीक है, यूजुअली क्वेश्चन जो है वो अप टिल पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग आ जाता है, या फिर अगर वो पूछ भी लेंगे पूरी मैनेजमेंट तो अगेन आपने मैनेजमेंट में सिर्फ नेम्स लिखने होंगे. ठीक है, बस लेकिन आपने आइडेंटिफाई करना है इज इट ओवर एक्टिव ब्लैडर और इज इट स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. और अगर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो ये बेशक आप पूरी फ्लो चार्ट ही बना दें. ठीक है, ताकि सारे पॉइंट्स कवर हो जाए. ठीक है, नाउ देयर वाज एन एमसीक्यू हियर समवेयर. ठीक है, अब हम ये एमसीक्यू कर लेते हैं. कैन समबडी रीड दिस आउट फॉर मी? आई जस्ट वांट टू गिव माय थ्रोट अ रेस्ट. You see a 54-year-old para 3 in your gynecological clinic who presents with a 9-month history of urinary leakage with both exercise and coughing. There is no urgency or frequency, and she is otherwise well with no previous pelvic surgery. On examination, she has a BMI of 24 kg per meter square. There is evidence of urine leakage on cuff and a grade 1 cystocele. ये तो UV prolapse भी है साथ. What is your first line treatment? A. Electrical stimulation in combination with the pelvic floor muscle training. B. Pelvic floor muscle training. C is duloxetine. D is systemic HRT. E is tension-free vaginal tape.
अच्छा, अब आप मुझे चैट में बताएं, व्हाट डू यू थिंक द आंसर इज? Okay, somebody has answered. Only one person has answered. Just think about it. आराम से. Just think about all the factors. Identify करें कि ये क्या चीज़ है. Is it stress incontinence or is it diffuser overactivity? Then think over that flow chart that we just did. उसमें क्या क्या चीज़ें पहले देते हैं. All right. Yes, a lot of people have answered pelvic floor muscle training, which is absolutely correct. So let's look at how and why. तो she's her age is, you know, she's older in age. ठीक है, तो आप basically देख रहे हैं risk factors दोनों के जो हमने पढ़े थे. Diffuser activity over मतलब bladder overactive bladder है या stress incontinence है, पहले हमें ये पता करना है. ठीक है, तो she does not have any urgency या frequency. तो हम लोग अब स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की तरफ जा रहे हैं बिकॉज लाइक एक्सरसाइजिंग और कफिंग पे यूरिनरी लीकेज हो रही है, अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, बीएमआई भी इज यू नो फाइन, and there is evidence of urinary leakage on cuff and grade 1 cystocele. आगे हम यूट्रोवेजाइनल prolapse में देखेंगे what does grade 1 cystocele mean. ठीक है, अब इसमें हम वो फ्लो चार्ट के हिसाब से सोचें तो अगर हमने इसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस सोच लिया है, ठीक है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या इन्वेस्टिगेशंस के बाद क्या आ रहा था, पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग. तो सिंपल सिंपल इसका आंसर बन जाता है बी. अब सिर्फ इसको एक कंफ्यूजन की जगह यहाँ पे है ए, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इन कॉम्बिनेशन विद पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग. इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो है कॉमनली हम क्या कहते हैं, मतलब इट इज़ अ रिलेटिवली न्यूअर थिंग. कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं, लेकिन ये बहुत एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है. हम सबको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन नहीं देते फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस. ठीक है, फिर अगेन डुलॉक्सिटीन जो है बेसिकली ये ओवर एक्टिव ब्लैडर में यूज़ हो सकती है. जैसे हमने पढ़ा था जहाँ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हम दे रहे थे, तो उस टाइम पे अगर वो नहीं काम करें तो कुछ पेशेंट्स में हम डुलॉक्सिटीन भी दे सकते हैं. इट्स अ कंबाइंड सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट. तो लेकिन ये भी इट्स नॉट रूटीन. फिर सिस्टेमिक एचआरटी तो नो. एंड देन टेंशन फ्री वेजाइनल टेप. अगर वो कहते हैं कि पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग भी हो गई है और यूरोडायनेमिक टेस्टिंग भी हो गई है, तो फिर हम टेंशन फ्री वेजाइनल टेप लगाते. ठीक है, तो ये इसका बड़ा सिंपल सीधा सीधा आंसर था. यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या इशू है. ठीक है, तो इसके एमसीक्यूज रिलेटिवली जो हैं वो बेहतर आते हैं एज कम्पेयर टू सम अदर चैप्टर्स. अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स. अब 10 टीचर्स में जो है यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स कोई बहुत ही बुरा लिखा हुआ था. नो ऑफेंस टू 10 टीचर्स, बट मुझे पढ़ते हुए बहुत मसला हो रहा था. तो लकीली आई फाउंड दिस प्रेजेंटेशन बाय वन ऑफ आवर टीचर्स. ठीक है, तो आई जस्ट रीड थ्रू दिस प्रेजेंटेशन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं. ठीक है, रीडिंग मोड पे इसको लगा देते हैं अगर ये लग जाए. कैन यू गाइस सी द प्रेजेंटेशन बाय द वे? Yes, we can. All right, awesome. Let me try to get the chat as well. Okay. ठीक है, अब हम एक सेकेंड. ठीक है, केस प्रेजेंटेशन है एंड इस केस प्रेजेंटेशन में ऑलमोस्ट हर चीज़ जो हमें इस चैप्टर से रिलेटेड पता होनी चाहिए वो कवर हो जाती है. ठीक है, केस प्रेजेंटेशन में आ रहा है 58-year-old मल्टी पैरा. ठीक है, शी इज मल्टी पैरा, प्रेजेंट्स विद पेल्विक हैवीनेस and sensation of mass protruding from the vagina. Symptoms worse than after prolonged physical exertion such as lifting or standing,
On occasion, she can feel and see something bulging from the vaginal opening. Increasingly, she is experiencing difficulties in emptying her bladder, and she needs to reduce the bulge with her fingers in order to empty her bladder. She does not have urinary leakage of any type, including leakage during physical exercise. तो ये हमारे पास incontinence rule out हो गया, ठीक है? Patient is a heavy smoker with a history of COPD and is obese. तो ये risk factors अच्छे खासे यहाँ हो गए. Multipara is a risk factor. Smoking is a risk factor. COPD is a risk factor. And obesity is a risk factor. ठीक है, क्लिनिकल क्या साइंस थे? समथिंग बल्जिंग फ्रॉम द वजाइनल ओपनिंग, शी कैन फील इट एंड शी कैन सी इट, और उसका काफ़ी इतना इतना ज़्यादा हुआ है कि दैट शी नीड्स टू रिड्यूस द बल्ज विद हर फिंगर्स इन ऑर्डर टू एम्प्टी हर ब्लैडर. ठीक है, तो दिस इज अ यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स. ऑल राइट, अब नॉर्मल एनाटमी इन्होंने बताई हुई है. ठीक है, दिस इज अ रियली गुड टाइम फॉर मी टू शो यू दिस डायग्राम ओवर हियर. ब्लैडर जो है यहाँ पे आगे होगा. ठीक है, दिस इज योर यूट्रस, और ये एंटीरियर फॉर्निक्स और ये पोस्टीरियर फॉर्निक्स की आप शेप देख लें कितनी अलग है. ठीक है, ये पीछे ये पेरिटोनियम, यहाँ रेक्टम इस पॉइंट पे आ जाएगा. ठीक है, फिर ये देख लें इंटरनल ऑस, एक्सटर्नल ऑस, एंड दिस इज द वजाइनल वॉल्ट. ठीक है, ये यूट्रस की कैविटी है. ठीक है, this is all stuff. ये I want you guys to see the relationship of the bladder and the uterus and the rectum. ठीक है, फिर normal anatomy. Yeah, this again just to reinforce that image के कितनी close proximity में ये तीनों चीज़ें पड़ी हुई हैं. अच्छा, अब anteversion and anteflexion. Normally the uterus lies in anteversion and anteflexion. तो ये आगे ये दिखा हुआ है. ठीक है, मैं अपनी मार्कर ले लेती हूँ और हम ये देखते हैं. ठीक है, एंटीवर्जन जो है ये वाला प्लेन है, तो ये वजाइना इधर है. ठीक है, वजाइनल वॉल्ट है, और हमारा जो यूट्रस है वो यूं पड़ा है. ठीक है, फिर ये पोस्टीरियर फॉर्न, इंटीरियर फॉर्न, अच्छा ये यूं पड़ा है. फिर हमारा सर्विक्स का एक प्लेन आ जाता है. ठीक है, तो ये हमारी आ गई सर्विक्स, जैसे ये प्लेन दिखाया है ना, तो बिल्कुल इसके पैरेलल जैसे ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ. ये सर्विक्स इस पॉइंट पे आई हुई है. तो एंटी फ्लेक्शन का क्या मतलब है कि इसके साथ ये यहाँ पे एंगल बन रहा है 125 डिग्री का, जो रेस्ट ऑफ द यूट्रस है. ठीक है, तो सर्विक्स के साथ एंगल बन रहा है यूट्रस का 125, इसको हम एंटी फ्लेक्शन कहते हैं. और विजाइनल वॉल्ट या विजाइना के साथ हमारे पास एंगल बन रहा है 90 डिग्रीज का, इसको हम एंटी वर्जन कहते हैं. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए. दिस इज द नॉर्मल वे, नॉर्मल एनाटमी. ठीक है, तो ये इसको आप अच्छे से देख लें. दिस ओवर हियर, दिस इज एंटी वर्जन. ठीक है, जो वजाइना और इसके साथ है. फिर अगर ये सर्विक्स के थ्रू मैं प्लेन अगर ये ड्रॉ करती, आई ड्रॉ इट अगेन जस्ट फॉर रीइंफोर्समेंट. ये वजाइना के थ्रू मैंने प्लेन ड्रॉ किया, तो इसके साथ यूट्रस जो है खैर यूं जा रहा है. तो ये 90 तो नहीं है बन रहा, बट जस्ट अस्यूम इट्स 90. इट्स बिकॉज द पिक्चर इज स्क्वॉश्ड. ठीक है, फिर ये सर्विक्स के थ्रू जो है मैं प्लेन बना रही हूँ. ठीक है, फिर इसके साथ जो है इसका 125 होना चाहिए एंगल. तो ऑब्वियसली ये एंगल्स थोड़े ख़राब हुए हैं, बट दैट्स बिकॉज द पिक्चर, दिस पिक्चर सो स्क्वॉश्ड. लेकिन नॉर्मल जो है ये अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, ये जो सी के अंदर दिखाया हुआ है. ठीक है, ऑलराइट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीवर्जन, एंटीफ्लेक्शन. अच्छा, एंटीवर्जन अगर नहीं है, रेट्रोवर्जन पहले भी बता चुकी. रेट्रोवर्जन इज अब नॉर्मल. ठीक है, इट मीन्स शायद कोई, इट कुड बी नॉर्मल समटाइम्स, बट यूजली आपने सोचना है कि एडिशन तो कोई नहीं है. तो एडिशन किस किस चीज़ में होगी? मेलिग्नेंसी में होगी, और मतलब सर्विकल, सॉरी क्या कहते हैं, ओवेरियन कोई मेलिग्नेंसी हो सकती है, कोई सर्विकल हो सकती है. उसके अलावा आज हमने क्या पढ़ा है जिसमें रेट्रोवर्जन हो सकती है? चैट में प्लीज मुझे बताएं. हाँ, पोस्ट ऑप हो सकती है, एशरमैन सिंड्रोम. एशरमैन सिंड्रोम नॉट नेसेसरली एशरमैन, यस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज. और आज हमने स्पेसिफिकली एंडोमेट्रियोसिस पढ़ा था, जो हमने पाउच ऑफ डगलस वाला एरिया जिसके अंदर एंडोमेट्रियोसिस हुआ था उसके अंदर स्पेशली. ठीक है, तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गया, कोई मेलिग्नेंसी होगी, पोस्ट ऑप भी हो सकता है, एंड एंडोमेट्रियोसिस. ठीक है, ऑल राइट, परफेक्ट.
ठीक है, तो ये रिविजन होगी डीडीज ऑफ रेट्रोवर्टेड यूट्रस। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल, हाँ नॉर्मल सपोर्ट्स के आपको नेम आने चाहिए, ठीक है। एंटीरियरली लाई द यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, पोस्टीरियरली लाइक कोलन, रेक्टम एंड एनल कैनाल, और जो पेरिनियल बॉडी है इट इज़ बिटवीन द वजाइना एंड द एनल कैनाल, ठीक है, पीछे। और कार्डिनल लिगामेंट्स हमें यूट्रस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये एक फैन शेप स्ट्रॉन्ग फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट्स होते हैं। बस रिमेंबर द नेम ऑफ कार्डिनल लिगामेंट्स, जिनको हम मैकन-रॉड्स लिगामेंट्स भी कहते हैं। देन वी हैव द यूटेरो सैक्रल लिगामेंट्स, ठीक है, ये एक्सटेंशन है कार्डिनल लिगामेंट्स के, ये और बस जस्ट रिमेंबर द नेम। फिर वी हैव प्यूबो सर्विकल लिगामेंट्स, तो 3 हो गए हमारे पास, ठीक है। पिछले थे कार्डिनल लिगामेंट्स, फिर हैं यूटेरोसैक्रल लिगामेंट्स, देन है प्यूबो सर्विकल लिगामेंट्स, 3 हो गए। अच्छा, तो इन्होंने सपोर्ट्स की पिक्चर बताई हुई है। अगेन सपोर्ट्स में उसके अलावा लिगामेंट्स के अलावा हमारे पास वो लिवेटर एनाई सारे मसल्स हैं जो यूरोजेनिटल डायफ्राम और सारे पेरिनियल मसल्स हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कब होगा हमारे पास प्रोलैप्स, जब इन लिगामेंट्स या इन मसल्स में से कोई किसी भी एरिया में वीकनिंग होगी, कुछ वीक हो जाएगा वहाँ पे, तो फिर हमारा सपोर्ट चला जाएगा। वीक कैसे होगा कि देयर इज हिस्ट्री ऑफ मल्टीपैरिटी, जैसे कि मल्टीपल वजाइनल बर्थ्स हुई हुई हैं, या फिर ओबीस है पेशेंट, और या फिर अब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा रहता है, जैसे अगर किसी के पेशेंट को सीओपीडी है, वो बार बार कफ किए जा रहा है, तो अब्डोमिनल प्रेशर जो है अक्सर ज़्यादा रहता है। फिर एज ज़्यादा होना इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। Levels of support, yeah, we'll do those for 1 2 3 जो levels of support हैं अभी हम कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप बुक में फॉलो करना चाहते हैं तो we have them on page number 148. इनफैक्ट यू नो आपने बुक से रिवाइज करना होगा, हम लोग बुक से ही ये लेवल ऑफ सपोर्ट जो है इनको देख लेते हैं। पेज 148 है, मैं बुक इधर भी खोल लेती हूँ। Yeah, page 1, figure 10.9 is sufficient, ठीक है। You just need to remember the names of the level of support and obviously at which level they are. अच्छा, पहले आपने देखना है लेवल 1, इस पे सपोर्ट प्रोवाइड होती है बाय यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, ये सस्पेंड करते हैं यूट्रस को और वजाइनल वॉल्ट को भी अटैच करते हैं, ठीक है। तो लेवल 1 इज द यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, और ये पिक्चर में बहुत अच्छे से बना हुआ है। फिर लेवल 2 जो मिड वजाइना है, ठीक है, ये अपर पार्ट ऑफ वजाइना, लेवल 1 अपर पार्ट ऑफ वजाइना को साथ में सपोर्ट दे रहा है। लेवल 2 में मिड वजाइना की सपोर्ट है, ये है फेशियल लाइन बिटवीन वजाइना एंड ब्लैडर या फिर रेक्टम, फ्यूजेस लैटरली एंड रन्स टू अटैच ऑन द साइड ऑफ द पेल्विक वॉल, ठीक है। इनफैक्ट आई गो बैक टू द प्रेजेंटेशन बिकॉज उसमें काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं, ठीक है। फिर लेवल 3 सपोर्ट इज बाय द पेरिनियल बॉडी which has the posterior vaginal fascia fused to its upper surface. तो for some reason इसमें levels of support I remember them being there, पता नहीं शायद मिस हो गया मुझसे। अच्छा, फिगर फिर 10.9 को जो पेज 148 पे उसको आप मार्क कर लें, और आपने ये लेवल 1 2 3 और इसकी सपोर्ट को आपने याद रखना है, ठीक है। लेवल 1 क्या था, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स था, इसमें यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स। उसके अलावा लेवल 2 की मेन चीज़ याद रख लें, ये बेसिकली जो प्यूबो सर्विकल फेशिया है और रेक्टोवेजाइनल फेशिया है, ये वो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और लेवल 3 में मेन है पेरिनियल बॉडी, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सपोर्ट की लॉस का क्या इशू है। लेवल 1 सपोर्ट कब लॉस होगी कि मतलब लेवल 1 सपोर्ट इवन आफ्टर हिस्टेरेक्टमी, अगर लेवल 1 की सपोर्ट लॉस हो जाती है, वजाइनल वॉल्ट को जो सपोर्ट चाहिए थी वो लॉस हो जाती है, तो वहाँ प्रोलैप्स हो सकता है वजाइनल वॉल्ट का आफ्टर हिस्टेरेक्टमी लेवल 1 की, ठीक है। फिर लेवल 2 का क्या इशू था, ये जो हमने देखा प्यूबो सर्विकल फेशिया और रेक्टोवेजाइनल फेशिया, अगर इसमें कोई डिफेक्ट हो जाएगा तो फिर प्रोलैप्स हो जाएगा ऑफ द वेजाइनल वॉल इनटू द वेजाइनल ल्यूमेन, तो इसमें एंटीरियर या पोस्टीरियर वेजाइनल प्रोलैप्स हो सकता है,
ठीक है, और एग्जामिनेशन पे जो अफेक्टेड वजाइना वॉल होगी वो बल्ज हो रही होगी विद इन द वजाइना। जब हम स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें वो बल्जिंग नजर आएगी। ठीक है, फिर लेवल 3 कब है? लेवल 3 की सपोर्ट थी पेरिनियल बॉडी की मेनली। ठीक है, उसके अलावा देर इज लाइक यू नो अदर फाइबर्स भी हैं मसल्स के वगैरह वगैरह। लेकिन पेरिनियल बॉडी किस चीज़ से अफेक्ट होती है? अगर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एपिजियोटमी हुई है तो तब इफेक्ट हो सकती है, या कोई वैसे ही नॉर्मल डेवलपमेंटल इशू है पेरिनियल बॉडी का तो तब भी इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, और इससे क्या है, ये प्रीडिस्पोज करती है एंटीरियर वजाइनल प्रोलैप्स के लिए। तो ये इसकी बेसिक कुछ चीज़ें थी, बट आई डोंट थिंक, आई एम नॉट श्योर, मैंने भी इसके क्वेश्चंस नहीं देखे तो आई डोंट नो वो कितने डिटेल में लेवल 1 2 3 के बारे में पूछते हैं। ठीक है, तो ये दिस आई रिकमेंड कि इवन अगर रिवीजन में अगर आपको लगे दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट तो स्किप कर दें, क्योंकि इस पे ना काफ़ी ज़्यादा दिमाग लग जाता है। लाइक इट्स समथिंग दैट इज अ बिट, मतलब अनलेस आप रट्टा लगाना चाहें, लेकिन अगर आप इसकी एनाटॉमिकल पिक्चर्स देख देख के कर रहे हैं तो इट टेक्स क्वाइट सम टाइम। All right. Let's continue with this presentation. यूरोजेनिटल डायफ्राम की पिक्चर दिखाई हुई है। ठीक है, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स किसको कहते हैं? हर्निया ऑफ वन और मोर पेल्विक ऑर्गन्स। यूट्रस भी हो सकता है, वजाइना भी हो सकती है, ब्लैडर या रेक्टम भी हो सकता है। देन यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स, डाउनवर्ड डिसेंट ऑफ वजाइना एंड द यूट्रस। एंड टर्मिनोलॉजी एंटीरियर वजाइनल वॉल जो है, अच्छा एक होती है हमारे पास सिस्टोसील। ठीक है, तो जो सिस्टोसील है जो ब्लैडर जो है वो डिसेंड कर जाता है अपर 2/3 ऑफ द एंटीरियर वॉल ऑफ वजाइना along with the base of bladder। तो ये इधर, मेरा माउस गायब हो गया, ये इधर पिक्चर ना बहुत अच्छे से दिखाई हुई है। ठीक है, ये एंटीरियर एक तो वजाइना भी थोड़ी सी इस तरह बल्ज कर रही है जिसको हम एंटीरियर वजाइनल प्रोलैप्स कहते हैं। फिर ये ब्लैडर भी साथ में प्रोलैप्स कर रहा है तो इसको हम सिस्टोसील कह देंगे। ठीक है, तो they've written urethrocoel with moderate cystocele, but here you can see यहाँ bulging हो रही है anteriorly और ये bladder इस तरह पीछे आ रहा है। फिर urethrocoel is this descent of lower 1/3 of anterior vaginal wall along with urethral displacement। फिर cystourethrocoel क्या होता है? Prolapse of entire anterior vaginal wall। ठीक है, तो they have shown this over here। ये देखिए पीछे ये bladder भी अंदर आ रहा है, urethra भी पीछे आ रहा है। ठीक है, फिर पोस्टीरियर वजाइनल वॉल में क्या होता है? इसको कहते हैं एंटेरोसील रेक्टोवजाइनल पाउच। ठीक है, पोस्टीरियर वजाइनल वॉल जो है जब प्रोलैप्स करती है, इसका एक और नेम भी था, इट्स कॉल्ड हर्निया ऑफ द पाउच ऑफ डगलस। ठीक है, हर्निया ऑफ द पाउच ऑफ डगलस, और ये मैंने पेज 150 के ऊपर रीडिंग करते करते जो है यहाँ मार्क कर लिया था। अच्छा, इसमें आपको नजर आ रहा है जो रेक्टम है वो कैसे प्रोलैप्स कर रहा है और उसकी वजह से जो पोस्टीरियर वजाइनल वॉल है वो कैसे आगे को मूव हुई भी है। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे जो है ये इंटेरोसील बना हुआ है। इनफैक्ट इवन जो है ये कंटेंट्स ऑफ द गट जो हैं यहाँ पे आ गए, जैसे इसको कहते हैं, इसको फिर कहेंगे पाउच ऑफ डगलस हर्निया। ठीक है, अच्छा, then we have to know कि what is the degree of the prolapse। ठीक है, 3 डिग्रीज हैं ये, बाय द वे पेज नंबर 150 10 टीचर्स के आप रीडिंग दे सकते हैं। स्टेज 1 2 एंड 3 है। आपने एग्जामिनेशन क्या करना है? आप स्पेकुलम एग्जामिनेशन करना है इन द लेफ्ट लैटरल पोजिशन एंड उनसे कहना है आप स्ट्रेन करें। फर्स्ट डिग्री तब है कि जब सर्विक्स विद इन द वजाइना हो, सेकेंड डिग्री सर्विक्स एट इंट्रोइटस आ गई हो, और थर्ड डिग्री है डिसेंट आउटसाइड इंट्रोइटस एट द वल्वा। और अगर यूट्रस बाहर निकल रहा है तो उसको हम प्रोसीडेंशिया कहते हैं, प्रोविडेंशिया कहते हैं। लेट मी जस्ट एक सेकेंड, let me google the term। I think it's called providentia, but I might be wrong। Providentia, no, it's called procedentia then। Yeah, okay, it's called, अगर यूट्रस बाहर निकल रहा हो, जैसे यहाँ ऊपर दिखाया हुआ है, ये जो हमारे पास बेडन सिस्टम है, जो हमने अभी बेडन सिस्टम पढ़ा है, ये पेज 150 पे लिखा हुआ है। तो ग्रेड 1 क्या था? प्रोलैप्स डज नॉट रीच द हाइमेनल रिंग। ठीक है, तो बुक में भी इसी तरह लिखा है, प्रोलैप्स डज नॉट रीच द, मतलब ये नॉर्मल था, तो अभी ये सिर्फ यहाँ तक रीच किया है और हाइमेनल रिंग तक नहीं गया। फिर ग्रेड 2 हमारे पास क्या था?
ये हमारे पास रीचेस द हाइमेनल रिंग, मतलब ये जो यूट्रस, ये जो सर्विक्स वाला एरिया, ये इतना नीचे आ गया, ठीक है। फिर ग्रेड 3 हमारे पास क्या था कि वो बाहर निकल रहा है उसका सर्विक्स का कुछ एरिया। फिर अगर यूट्रस ही बाहर निकल रहा है तो उसको हम कहते हैं प्रोसीडेंशिया, PROCIDENTIA, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 स्टेज थी, लेकिन ये है बेडन सिस्टम। वी हैव अनदर सिस्टम, इट्स कॉल्ड POPQ, हाँ ये वाला, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स क्वांटिफिकेशन। ये डिफरेंट सिस्टम है, इसकी स्टेजिंग हल्की सी डिफरेंट है। तो स्टेज 0 है नो डिसेंट ऑफ पेल्विक ऑर्गन ड्यूरिंग स्ट्रेनिंग। नंबर 1 डिसेंट ऑफ यूट्रस टू एनी पॉइंट इन द वजाइना अबव द हाइमेन। फिर 2 डिसेंट ऑफ यूट्रस नियर वजाइनल ओपनिंग, एक्चुअली इट्स प्रीटी सिमिलर। फिर 3 में प्रोट्रूशन ऑफ यूट्रस आउट ऑफ वजाइना। फिर 4 में यूट्रस कंप्लीटली आउट ऑफ वजाइना। लेकिन ये जो पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स क्वांटिफिकेशन है ना, ये आई थिंक ये काफ़ी डिटेल्ड एक वो चीज़ है, और ये आई थिंक फर्दर जब गायनेकोलॉजिस्ट बन जाते हैं तो उसके बाद इसको डिटेल में स्टडी करना होता है, ठीक है, बिकॉज इसके हिसाब से ट्रीटमेंट होती है। तो बट दिस इज अ वेरी गुड कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर, इसको आप देख लें एक दफ़ा तो आपकी रिविजन हो जाती है। ग्रेड 1 क्या था, इज नॉट रीचिंग हाइमेनल रिंग येट। ग्रेड 2 था रीचेज हाइमेन। ग्रेड 3 था इट इज़ आउटसाइड द हाइमेन, ठीक है। एंड अगर यूट्रस पूरा बाहर है तो वो है प्रोसीडेंशिया। तो ये मैं डबल इसलिए रिपीट किया क्योंकि रीइंफोर्समेंट हो जाए। फिर हमारे पास है इटियोलॉजी में वी हैव कंजेनिटल वीकनेस हो सकती है, एक्वायर्ड इफेक्ट्स, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इटियोलॉजी। फिर मेनोपॉजल एट्रोफी में हो सकता है, ठीक है, अगर एस्ट्रोजन विड्रॉल हो जाए 1 to 2 years आफ्टर मेनोपॉज जो है वहाँ एट्रोफी हो जाती है और फिर प्रोलैप्स का चांस ज़्यादा हो जाता है। There are activating factors again. There could be some sort of increase intra-abdominal pressure due to fibroid या कोई pelvic tumor या कुछ भी। फिर पैथोलॉजिकल चेंजेस में क्या होता है, इलोंगेशन हो जाती है, हाइपरट्रोफी ऑफ सर्विक्स हो जाती है, वेजाइनल एपिथेलियम की केराटिनाइजेशन हो जाती है। अच्छा, डीक्यूबिटस ना अल्सरेशंस भी हो जाती हैं, जो जो सर्विक्स और का पोर्शन बाहर आया हुआ है, या फिर इवन अगर नहीं आया, हल्का सा प्रोलैप्स भी हुआ है, तो इट्स नॉट सपोज टू बी दैट वे, तो वहाँ अल्सरेशंस डेवलप हो जाती हैं। इनकार्सरेशन हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक की कॉम्प्लिकेशंस में। मेन आपने डीक्यूबिटस अल्सर्स भी याद रखने हैं, क्योंकि आप जब स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे तो वो भी आपको नजर आ सकते हैं। फिर रेजिडुअल यूरिन इंक्रीज हो सकती है, स्ट्रेनिंग की वजह से जो है ब्लैडर हाइपरट्रोफी हो सकती है, यूटीआईज हो सकते हैं, एंड इवन हाइड्रोयूरेटर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकते हैं अगर बहुत देर तक जो है वो स्ट्रेनिंग और यूरिनरी रिटेंशन और वो सब कुछ है, ठीक है। फिर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, lump in the vagina or the feeling that something is protruding out. फिर लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, लोअर बैक एक हो सकता है, कोई वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है एब्नॉर्मल, यूरिनरी सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। और डिफिकल्टी इन एम्प्टिंग ब्लैडर, कोइटल डिफिकल्टीज and digitation rectally or vaginally to empty the bowel. अच्छा, important questions, I'm just going to skip this. Examination हम करते हैं लेफ्ट lateral position में with sim speculum, ठीक है, और पेशेंट से कहते हैं स्ट्रेन करके रखे, और यूट्रोवाजिनल प्रोलैप्स इज विजिबल, एंड अगर माइनर प्रोलैप्स है तो स्ट्रेनिंग पे विजिबल हो जाएगा, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट में हम क्या है, अच्छा ट्रीटमेंट जो है इसकी है कंजर्वेटिव है, एंड देन वी हैव सर्जिकल, ठीक है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में वी हैव पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस नंबर 1 पे, ठीक है। उसके बाद हम वेजाइनल पेसरीज यूज करते हैं, जिन्होंने फिजियोथेरेपी लिखी हुई है, तो केगल्स डिजाइन पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, आई कीप लूजिंग माय माउस हियर इट इज, हम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कराते हैं, ठीक है। अगर उससे भी ठीक नहीं हो तो फिर हम, अच्छा इन्होंने पिक्चर डाली हुई, नाइस। फिर पेसरी ट्रीटमेंट करते हैं, ये हम पेज 150 पे हैं अभी। तो जो जो मोस्ट कॉमनली यूज है वो है रिंग पेसरी, और क्या कहते हैं, हम एवरी 6 months इनको जो है चेंज कर देते हैं, हम डालते हैं 6 months के लिए। और ये बेसिकली इसको ट्रीट नहीं करता, बस उस जगह पे जो है ना, जो नीचे आया हुआ ना प्रोलैप्स होके, उसको ऊपर करके रखता है, ठीक है, उसको होल्ड करके रखता है बेसिकली। ये पेसरीज की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये किस तरह ये इंसर्ट होती हैं, तो आप देख सकते हैं जो रिंग पेसरी है सबसे कॉमनली, ये हम यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं, तो ये इसको जो है ऊपर होल्ड करके रखता है बेसिकली, ठीक है। रिंग पेसरी जो है जिनके अंदर पेरिनियल बॉडी का कोई इशू है, उसमें रिंग पेसरी नहीं हम यूज करते, उसके अंदर हम आई थिंक ये हॉज पेसरी या गेलहॉर्न पेसरी, गेलहॉर्न किधर है, गेलहॉर्न ये वाली शेल्फ पेस्ट्री यूज करते हैं जिसमें प्रीनियल बॉडी नहीं होती, शेल्फ पेस्ट्री। अच्छा शेल्फ पेसरी,
या शेल्फ भी इधर पेज 150 लिखा है, शेल्फ भी यूज कर सकते हैं और गेल हॉर्न भी। मैं सिर्फ नेम्स अभी बता रही हूँ, ठीक है, नेम्स आपने याद रखने हैं। शेल्फ है एंड गेल हॉर्न पेसरी है, ठीक है। तो ये अगर प्रेग्नेंट बॉडी नहीं होती तो उसमें यूज करते हैं। आप रिंग वाली नहीं यूज करेंगे, हालांकि रिंग वाली जो सबसे कॉमनली यूज होती है अदरवाइज। ऑलराइट, पेसरी का ये कि ये ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स भी इसके साथ हो सकता है, नो प्रॉब्लम। और कुछ वुमेन जो हैं वो खुद ही इंसर्ट और रिमूव भी इसको कर सकती हैं, ठीक है। तो इनको ट्रेनिंग देनी है आपने, फिर अल्टीमेटली आपने सर्जिकली इसको ट्रीट करना है, ठीक है। बुक में ये बहुत पता नहीं हैपहैज़र्ड लिखा होता है इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट, तो ये बहुत अच्छे तरीके से इधर लिखी हुई है। इनके ना आपने नेम्स करने हैं। एंटीरियर कॉर्पोराफी कर सकते हैं अगर एंटीरियर वजाइनल वॉल प्रोलैप्स है, फिर पोस्टीरियर कॉर्पोराफी कर सकते हैं अगर पोस्टीरियर वजाइनल वॉल प्रोलैप्स है। मैं ये सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही बिकॉज आपको सिर्फ नेम्स चाहिए। देन वजाइनल हिस्टेरेक्टमी हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोलैप्स, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यूट्रस ही पूरा वजाइना से बाहर निकल रहा है, क्या इशू है, तो आप उसको हिस्टेरेक्टमी कर सकते हैं। देन वी हैव ए मैनचेस्टर और ए फॉदरगिल रिपेयर, और ये अगेन माय माउस, मैनचेस्टर ये वाला रिपेयर हम तब करते हैं जब हमने उसकी वो मेंटेन करनी हो, क्या कहते हैं, लाइक इफ वी वांट हर टू स्टिल बी एबल टू कंसीव, तो ये वाला रिपेयर करते हैं, ठीक है। बस ये आप याद रखें नेम के साथ। देन वी कैन डू, अच्छा इसमें नहीं लिखा, वी कैन डू सैक्रोहिस्ट्रोपेक्सी और वी कैन डू सैक्रोकॉल्पोपेक्सी। इसकी मैं पिक्चर दिखा देती हूँ इनफैक्ट सैक्रोहिस्ट्रोपेक्सी की, जस्ट गिव मी अ मिनट। सैक्रो, या वो 9 भी बज गए हैं, आई एम सो सॉरी गाइस, लेट हो गए, आई डिडंट रियलाइज। अच्छा दिस इज योर सैक्रोकॉल्पोपेक्सी। तो ये सैक्रम के साथ जो है, जो वेजाइनल वॉल्ट है, इसको पकड़ के अटैच किया हुआ है, ठीक है। यू कैन सी दैट ये हिस्टेरेक्टमी हुई हुई है पेशेंट की, तो ये वेजाइनल वॉल्ट बच गया था जो प्रोलैप्स कर रहा था, तो फिर आपने उसको यहाँ अटैच कर दिया। दिस इज फॉर दोज फीमेल्स हु वांट टू रिमेन सेक्सुअली एक्टिव जिनकी हिस्टेरेक्टमी हो चुकी है। देन द अदर वन दैट आई मेंशन इज कॉल्ड सैक्रोहिस्टेरोपेक्सी। तो उसमें ये है, हिस्टेरो से आपको पता चल रहा है कि उसका अभी तक यूट्रस प्रेजेंट है, ठीक है। तो बस वो यहाँ पे यूट्रस होगा और वो सर्विक्स से इस ये वाला चीज है, इसको सर्विक्स से अटैच करके वो सैक्रम पे अटैच कर देंगे, ठीक है। तो यू कैन टेल दैट दिस एन एब्डोमिनल सर्जरी, ठीक है। फिर सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट फिक्सेशन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट फिक्सेशन, यहाँ पे सैक्रोस्पाइनस जो लिगामेंट होगा, बस ये सेम चीज जो करेंगे, सर्विक्स से लेके उस सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट तक आप उसको ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 ये प्रोसीजर हैं, सैक्रोहिस्ट्रोपेक्सी, सैक्रोकॉल्पोपेक्सी एंड सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट फिक्सेशन। आई एम थिंकिंग ये मैं लिख के ना ग्रुप में सेंड कर दूंगी ताकि आप अपनी बुक पे नोट कर लें, क्योंकि लिटरली मैंने सिर्फ पॉइंट्स अपने बुक पे बनाए हुए हैं ताकि एंड पे आई कैन जस्ट रीड इट, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोलैप्स सर्जरी की जरूरत नहीं है, बस इनके नेम्स पता होने चाहिए, ठीक है। अब मैं आपसे रैंडमली, अच्छा बाय द वे यू गाइस कैन लीव इफ यू विश, बस मैं आपसे कुछ रैंडमली कुछ क्वेश्चन पूछूंगी एंड देन आई विल आस्क यू द ट्रीटमेंट, ताकि ये वाला हिस्सा हमारा रिवाइज हो जाए आज का चैप्टर, ठीक है। सिनेरियो है 73-year-old female, she presents with frequency of urine, urgency and hematuria. What is the first investigation you would like to conduct? चैट में मुझे बताएं कि यस, ओके। सपोज उसकी जो है हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन अच्छे से हो गया है, यस, लिथोटमी पोजीशन में हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो गया है, उसकी
हिस्ट्री वगैरह सब होगी है। अच्छा, यूरिनालिसिस, ऑलराइट, यूरिनालिसिस पे आपको मिला +1 फॉर प्रोटीन, +1 फॉर शुगर एंड आपको मिला हीमेटूरिया। तो अब नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है? या यू कैन डू अ रीनल ट्रैक्ट अल्ट्रासाउंड। ओके, कैन यू टेल मी कि हीमेटूरिया जो है उसको हम कौन सा फ्लैग कहते हैं? सो ऑब्वियस ना, इट्स वन ऑफ द रेड फ्लैग सिम्टम्स। ठीक है, जब रेड फ्लैग हो तो हम लोग, हाँ रेड फ्लैग हो तो हम उसको सिस्टोस्कोपी के लिए भेजेंगे। ठीक है, हमने फॉरन जो है वी हैव टू डू द सिस्टोस्कोपी। अगर कोई भी पेशेंट, उनकी देखें एज भी 60 से अबव थी, मैंने कहा था 73-year-old फीमेल है, ठीक है, और वो आ रही है हमारे पास, ठीक है, अर्जेंसी है और फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, लेकिन हीमेचूरिया जब है तो आपने उनको सिस्टोस्कोपी के लिए रिकमेंड करना है। ठीक है, अच्छा, 38-year-old फीमेल हैं, she has symptoms of only stress incontinence. She has completed her course of pelvic floor exercises, but there is no improvement. Further treatment will you, what further intervention or treatment will you recommend her for? She has stress incontinence. ठीक है, yes. या ठीक है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस पे हम मेडिकेशन नहीं देते, वो ओवर एक्टिव ब्लैडर में देते हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया कि उनको सिर्फ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, उनको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज दी गई थी, ठीक है, लेकिन अब वो नहीं, उनकी इम्प्रूवमेंट हो रही। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन योर ऑप्शंस ऑफ एमसीक्यू। अगर एमसीक्यूज में यूरोडायनामिक टेस्टिंग और वो सब चीज़ें लिखी होंगी तो यू विल गो फॉर यू विल वांट टू गो फॉर यूरोडायनामिक टेस्टिंग। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि कोई आप वो बताएं, एक सेकेंड, यू डोंट हैव टू गो फॉर यूरोडायनामिक टेस्टिंग, एक्सक्यूज मी, आप इसमें यूरोडायनामिक टेस्टिंग क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि क्वेश्चन स्टेम में उन्होंने ऑलरेडी लिख दिया कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस उसको है। ठीक है, शी लाइक दे ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, तो आपने मतलब उसको फर्दर डिफरेंशिएट आपको करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको डायग्नोसिस पता चल गया है। तो फिर हम या कॉल्पो सस्पेंशन या ट्रांसवेजाइनल टेप के लिए जाते हैं, और बुक में लिखा हुआ था कि ये ट्रांसवेजाइनल टेप मतलब मिड यूरिथ्रल टेप लिखा हुआ था, तो ये वाली ऑप्शन लिखी हुई थी, तो यू विल सेलेक्ट दैट वन। ठीक है, अच्छा, अब कॉल्पो सस्पेंशन के दरमियान या ट्रांसवेजाइनल टेप के दोनों अगर ऑप्शंस प्रेजेंट हो तो आई एम नॉट श्योर कि कौन सी वाली ज़्यादा रिकमेंडेड है। आई नो हमारी सेटिंग में कॉल्पो सस्पेंशन शायद ज़्यादा होती है। बॉचुलिन टॉक्सिन, बॉचुलिन टॉक्सिन देने का फ़ायदा इस केस में इसलिए इतना ज़्यादा नहीं है, इज़ बिकॉज हमने जो अंडरलाइंग पैथोलॉजी थी, जो मसल्स की वीकनेस थी, हमने उसको ज़्यादा एड्रेस करना है। ठीक है, अगर डिट्रूजर की ओवर एक्टिविटी नहीं है, हम दे सकते हैं बॉचुलिन टॉक्सिन, बट दैट वाजंट द इशू। मतलब वो फिर भी इनिशियल इशू जो मसल्स की वीकनेस है उसको ट्रीट पहले करना है, उसके बाद फिर आप दूसरी चीज़ें देख सकते हैं कि क्या देना है क्या नहीं। तो इफ एनीवन कैन टेल मी कि अगर दोनों ट्रांसवेजाइनल टेप आए या वर्सेस कॉल्पोस को वो कॉल्पो सस्पेंशन आए तो क्या दे सकते हैं? आई डोंट नो अगर इनमें कौन सी ज़्यादा रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है। ओके, समवन हैज सेड ट्रांसवेजाइनल टेप, ठीक है, बिकॉज ट्रांसवेजाइनल टेप एक लेटेस्ट वाली चीज़ है। आई डोंट नो द आंसर टू दिस, आई एम जस्ट आस्किंग यू गाइस रियली। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट था पेज 144 पे लिखा हुआ सर्जिकल ट्रीटमेंट में, द मोस्ट इफेक्टिव एंड थर्स द फर्स्ट चॉइस प्रोसीजर इज सिंथेटिक मिड यूरिथ्रल टेप प्रोसीजर। ओके, आई मस्ट हैव मिस्ड दैट। Oh yeah, उसको फिर पेन नहीं लगा हुआ मेरा, which means I think I didn't read that part. Mm, yes, most effective and thus the first choice procedure is synthetic mid-urethral tape procedure. Absolutely correct. Okay, ठीक है. The older procedure was called post suspension, now it's not used anymore. वो भी लिखा हुआ 1990s में होता था। I think I'm not sure. I think हमारी setting में अभी तक ये use होता है, but I'm not sure. खैर, whatever it is, हम UK वाला वो follow कर रहे हैं book, तो we should be
putting mid-urethral tape as your answer. All right. ठीक है, thank you for that. I hadn't read that part. Next क्या है हमारे पास? Question क्या था? By the way, मैं book के ही questions कर रही हूँ for revision. What is the first line drug treatment for overactive bladder? Yes. First line drug treatment. Bladder training is conservative. Yes, anticholinergic drugs हैं और anticholinergic drugs में भी you can find any, but oxybutynin is often the recommended first line one. अच्छा, अगर आप conservative या medical management has failed, uh, what should be performed before second line treatments for incontinence? If your initial management for incontinence has failed, what should you perform before second line treatment for incontinence? Yes. ठीक है. Mirapegrone is second line treatment. सेकेंड लाइन ड्रग ट्रीटमेंट. ठीक है, यू शुड डू यूरोडायनामिक टेस्टिंग. आपने इनकॉन्टिनेंस के साथ पेशेंट आया था, आपने फिर उसको जो भी इंटरवेंशन दी, एक्सरसाइजेस दी, ब्लैडर ट्रेनिंग का कहा, वो नहीं काम किया. ठीक है, यू ट्राइड एवरीथिंग. अब आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले यूरोडायनामिक टेस्टिंग करनी है. लेकिन अगर आपका डायग्नोज पक्का हो चुका है, लाइक अगर आपको फॉर श्योर मतलब क्वेश्चन स्टेम में ही उन्होंने बता दिया है, तो फिर आपको यूरोडायनामिक टेस्टिंग नहीं करने की जरूरत. लेकिन ऑब्वियसली पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं, दे डोंट कम इन अ क्वेश्चन स्टेम. तो जब नॉर्मली जब पेशेंट आएंगे और आपने उनको इंटरवेंशन दे दी, वो नहीं काम की, तो फिर आप यूरोडायनामिक टेस्टिंग की तरफ जाएंगे. ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे. आई वांटेड कि जो हम सब फर्टिलिटी का जो वो उसका ऑडियो शायद मुझसे रिकॉर्ड नहीं हुआ,